आप सब लोगों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और बाकी सब जो भी। मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी आर के बी और मैं हूं प्रदीप जी के साथ यानी एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ में हमेशा आपके साथ आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। We are the only country in the world that has so many names, right? I mean, we're India, Diversity. we are Hindustan, We are a country We're with Hind. absolute diversity. we're Hind, we're India, we're Bharat, we were always Bharat, Bharat Varsh, Bharat Khand, Bharat kuch na kuch. I hope we don't lose our other names. Bharat is fine, I love Bharat, but I think the rest of the names are also quite nice. Right, and the whole world is at the moment congratulating Mr. Modi on a very successful G20 presidency, and most importantly on the India, Iran, Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Europe corridor. It's going to be fantastic. It's going to be absolutely brilliant what has been achieved. If it comes through, I hope it does. That means the Belt and Road Initiative or the Silk Route of China will have to take a back seat. That's what is going to happen, which is, I think, in the witness of things. And the other thing is that the Canadian Prime Minister, President, is he the Prime Minister? Is he the President? Justin Trudeau. He's been sent off with a flea in his ear, especially with regard to the Khalistanis. Trudeau says that we believe in freedom of expression. Great, but when that freedom of expression actually talks about killing Indians, killing I mean, consul, killing the staff of the Indian consulates in Canada, that's not freedom of expression anymore. That's a call to violence, that's a call to murder. And I don't think any nation in the world can ever accept that. Pradeep ji. Sir, how can any, in any country, there's a threat to the diplomats, openly posters are put that you'll be killed. And Yes. the government of the day doesn't respond. The government of the day is dependent on the 25 members of parliament who are from that pro-Khalistan party for its survival. So, But then India has to retaliate in the similar yeah, we will. और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, जहाँ तक कनाडा का प्रश्न है, Canada has refused visas. It's a blanket ban, by the way, from the Canadian government officially. Any armed forces personnel who have served in Jammu and Kashmir, any paramilitary forces personnel who have served in Jammu and Kashmir, any of our bureaucrats who have served in Jammu and Kashmir, or for that matter, any member of the Jammu and Kashmir police will not be granted a visa to Canada. Yes. I think we should retaliate. We should retaliate. We should retaliate, and that's it. I mean, this is nonsense what is happening over here. And Mr. Modi is absolutely right in telling Mr. Trudeau exactly where he gets off. I'm really proud of this Prime Minister. And at the moment with us, from the Bharatiya Janata Party, we have Rani Dwivedi ji. Rani Dwivedi ji, namaskar. नमस्कार सर, जय भारत। जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय इंडिया, जिंदाबाद। सभी अपने हैं, ऐसी क्या बात है, लेकिन जय भारत। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। भारत अपना है ना सर, सब कुछ अपना है पूरा। अरे तो मोदी जी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। सब कुछ अपना है, अमेरिका भी अपना है मैम। एक दिन वन ऑफ दीज डेज आई थिंक वेरी शॉर्टली एन इंडियन विल बी इन द व्हाइट हाउस, जस्ट लाइक एन इंडियन इज इन व्हाइट हॉल, सिमिलरली एन इंडियन विल बी इन द व्हाइट हाउस। हर एक कोई अपना है। लेकिन रानी द्विवेदी जी ये बताएं, ये G20 समिट के बाद अब मोदी जी की जो स्थिति हो गई है, मोदी जी का जो स्तर है वो इस कदर हो गया है that the whole world, including China and Russia, both and apart from everybody else, they're thanking Mr. Modi. Amazing. You must be very proud. We're all very proud. He's our Prime Minister. But you work in the BJP. We all are very proud. भारतीय है, so we all are very proud. एक अद्भुतपूर्व ऐसी हमने G20 की समिट देखी। मैंने तो राजीव जी जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं 77 की बॉर्न हूँ, उस दिन के बाद से अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट अगर मैंने कोई देखा है
तो वो G20 का देखा है। हमारी भारत की ताकत जी। एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको G20 में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बता पाएगा। सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट। गांधी जी कहती हैं कि तुम्हारा G20 और हमारा G20, अभी हमारा G20 आने वाला है, ये तो इनका G20। इज दैट अ राइट थिंग टू से? आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू से। मतलब ये अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई है प्रियंका गांधी जी से। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी फ्रैंकली। आई डोंट थिंक राजीव गांधी जी और इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू वुड हैव एवर सेड सच अ थिंग। उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। इन्होंने मतलब ये कैसे कह दिया तुम्हारा G20 और हमारा G20? ये क्या मतलब हुआ रानी जी? सर, अभी की उनकी जो परिस्थिति आप देखेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, वो एक ही लाइन चलते हैं, मैंने भी देखी, हमारा G20। सो ये भारत देश का G20, भारत ने होस्ट किया G20, तो हर भारतीय का हुआ। अब उनका नया कौन सा G20 है, इसका आप और मैं उत्सुकता से वेट करेंगे। जी। लेकिन इस तरह की इनमैच्योर जब स्टेटमेंट्स आती है तो सोचना पड़ता है कि किस तरफ अपोजिशन जा रहा है। लेकिन रानी किस जी, तरफ आपसे मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल जी, आपसे। जी। क्या इनको मालूम भी है ये क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या ये तोते की तरह मतलब रिपीट कर देते हैं जो भी इनको पढ़ाया जाता है? मतलब आपको भी फॉर एग्जांपल अगर पार्टी अगर आपको भी कोई ब्रीफिंग देती है कि रानी जी आपको ये आपको लाइन लेनी है, आप, मुझे मालूम है बीजेपी की ब्रीफिंग कैसे होती है, आई हैव अटेंडेड क्वाइट अ फ्यू माई सेल्फ, कि किस प्रकार सामने से सवाल जवाब होता है, भाई ये क्यों, ऐसा क्यों, वगैरह वगैरह, हर एक कोई सवाल जवाब करता है। तो यहाँ ये लोग जो भी इनको पढ़ाया जाता है तोते की तरह बोल देते हैं हमारा G20। मतलब ये क्या हुआ? मतलब पूरे भारत की आपने बेइज्जती कर दी। ऐसा है सर कि हम जब कहते हैं कि हम भारत का प्रधानमंत्री अगर हम बनना चाहते हैं या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को 55 से 56 साल दिए जाते हैं जी। और उसे ब्रीफिंग में ये भी नहीं पता होता है कि अगर किसी ने एक सेंटेंस दिया है तो उसको अपने लैंग्वेज में उसे क्या बोलना है, वो रट्टा भी मारे तो उस रट्टे का भी हिसाब किताब कुछ होना चाहिए। जब हमें सब्जेक्ट की गहराई या विषय का पता नहीं हो तब इसको बालिश बुद्धि बोलते हैं सर। जी। हम इसे बालिश बुद्धि कहेंगे। अजीब जी, गरीब राजीव। मसला। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड प्रदीप जी, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटेड। रानी जी, मोदी जी ने अचीव किया G20 was a fantastic achievement. Economic integration between India, West Asia and Europe, a corridor, India, the Middle East and Europe. एक जबरदस्त किस्म के बिजनेस और इकोनॉमिक्स में एक नया एक मोड, टर्न ऑफ इवेंट्स बोल सकते हैं वर्ल्ड के लिए। एट द सेम टाइम कांग्रेस का यही कहना कि देखो लोकतंत्र खत्म है। राहुल गांधी थे, ही वाज इन बेल्जियम, ही वाज आउट ऑफ द कंट्री, बोले कि लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में है, लोकतंत्र को सिर्फ कांग्रेस बचा सकता है, इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट एंड ओनली कांग्रेस कैन सेव। तो व्हेन आर दे गोइंग टू चेंज रानी जी? हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी? उसी वक्त जब G20 यहाँ पर हो, राहुल गांधी बाहर जाता है, बोलते लोकतंत्र खतरे में। हाउ डू यू सी दैट रानी जी? देखिए, जब पूरे देश के दुनिया के लीडर्स आपके देश में आए हो, आप जिसे होस्ट कर रहे हो, मैं और आप उस हर G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। जब मेरे भारत में पूरा वर्ल्ड आया हो और इस ऐसे वक्त जब मैं बाहर जाऊं और कहूं कि देखो देखो मेरा लोकतंत्र बहुत खतरे में है और मैं ही बचा सकता हूं, तो मुझे लगता है दुनिया का जो कोई चैनल या जो कोई इसे सुन रहा होगा वो इसे एक बहुत ही बोलते ना, एक जिसे कोई समझ नहीं है या वो जानता ही नहीं है पॉलिसीज क्या है, उसने रट्टा भी नहीं मारा है और उसके लिए लीडरशिप, कंट्री में क्या चल रहा है, देश की डिमांड क्या है, देश किस पथ पे जा रहा है, देश की इकोनॉमी कहाँ बढ़ रही है, देश कहाँ मजबूत हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। लेकिन क्या करे साहब, राहुल गांधी जी को ही नहीं दिख रहा है। तो वो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट, उनका लोकतंत्र तो हर जगह खतरे में हो जाता है, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो कहीं जाए। सिर्फ वो चाइना के लिए अच्छा बोल सकते हैं, बाकी वो अपने देश के लिए अच्छा बोले, ये वो अभी तक तो मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन रानी जी, कांग्रेस तो ये कहती है कि चाइना के लिए सिर्फ आप अच्छा बोलते हैं और मोदी जी चाइना के ऊपर चुप्पी साथ जाते हैं, चाइना के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। रानी जी। नहीं सर, राजीव जी, अगर देखेंगे तो जब मेरा देश बढ़ रहा होता है ना, तो मैं दूसरे देश में जाती हूँ
मैं एक सिटीजन के नाते अगर मैं दूसरे देश में जाती हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि मेरा देश कितना स्ट्रांग है। मैं ये नहीं बताती कि मेरी बगल की कंट्री में क्या चल रहा है और मेरे देश में क्या नहीं चल रहा है। डू यू हैव टॉक समवेयर अबाउट योर कंट्री डेवलपमेंट? नो। डू यू हैव टॉक अबाउट योर यूथ, हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग इन योर कंट्री? नो। डू यू टॉक अबाउट योर इकोनॉमी, वेयर ग्रोथ इज गोइंग? नो। सो व्हाट यू आर डूइंग? आप जाके सिर्फ हम बहुत बुरी हालत में हैं, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हम बहुत परेशान हैं और इसे सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, इतना ही वो जानते हैं बोलना और उतना ही वो बोलते हैं। रानी जी, अभी आगे जाके राहुल गांधी कहता है कि मैं भगवत गीता पढ़ने लगा हूं, मैं उपनिषद पढ़ने लगा हूं और इन दोनों चीजों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और प्राप्त किया, हिंदुत्व को समझा है। और बोले कि यह हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व टोटली ऑपोजिट है, आसमान जमीन है, ये टोटली डिफरेंट है। तो बोले कि ये हिंदुत्व जो बीजेपी का है वो नफरत का हिंदुत्व है, वो दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली है। तो हाउ डू यू सी इट? अभी राहुल गांधी भी भगवत गीता, उपनिषद वो पढ़ के बोल रहे हैं कि हिंदुत्व इज टोटली डिफरेंट, हिंदुत्व इज नॉट व्हाट बीजेपी इज प्रीचिंग, दैट इज नॉट हिंदुत्व। रानी जी, मुझे लगता है कि किसी एक टॉक शो में उन्हें जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने भगवत गीता में पढ़ा क्या है, उन्होंने बाकी हमारे ग्रंथों में पढ़ा क्या है और उनकी डेफिनेशन किस ऐसे किताब के पन्ने से ऐसी डेफिनेशन हुई है कि हिंदुत्व मतलब राम जी नहीं है, हिंदुत्व मतलब हिंदुज्म नहीं है, हिंदुत्व मतलब पूजा नहीं है, हिंदुत्व मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना नहीं है, हिंदुत्व मतलब क्या नहीं है। ये राहुल जी को अगर पता है तो सच में किसी डिबेट कंपटीशन में आप लोग ही बोलिए कहीं जाए और हमें बताए कि हिंदुत्व मतलब क्या है उनका और हिंदुत्व जो हम जीते हैं, आप जीते हैं और मोदी जी जीते हैं, वो क्या है। लेकिन तो रानी ये जी, मैं- राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी इज एंटी हिंदू। कहते हैं भगवत गीता में और अभी तक जितने उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं, मुझे मालूम नहीं कितने पढ़े हैं, 108 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे मालूम नहीं है, शायद पढ़ ली हूँ, ही इज जीनियस, मुझे मालूम नहीं था कितने पुराण पढ़े हैं, कितने उपनिषद पढ़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी इज एंटी हिंदू, क्योंकि कहीं पर भी भगवत गीता में या जितने उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी से नफरत करो, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी नफरत की पार्टी है। रानी जी, हम किससे नफरत करते हैं भाई? मुझे तो नहीं उनको दिखता है कि लगता हम होगा, किससे नफरत करते हैं। उनको लगता होगा रानी जी आप उनसे नफरत करती हैं, आपको उनको बताना चाहिए कि हम नफरत नहीं करते आपसे। देखिए, हम लोग तो इतना उनसे प्यार करते हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं दिखते तो हम लोग सोचते हैं कि राहुल जी कब आएंगे। ये तो बात ऐसी नहीं है। जी, हर घर, छोटे तबके से लेकर तो बड़े तबके तक मोदी जी ने हर किसी का ध्यान रखा है, जी। किसी जातिवाद पे नहीं। स्टालिन साहब को छोड़ के, जी, उदयनिधि स्टालिन साहब को छोड़ के बाकी सबका ख्याल रखा है। अब राहुल जी को उनका हिंदुत्व सही लग रहा है सर। अब उनके मन से ये बोला जाता है, उनको उनका हिंदुत्व सही लग रहा है। नहीं, वो तो बोलते हैं हिंदू तो है ही नहीं, हम तो हिंदू ही नहीं है, हम तो तो द्रविडियन हिंदू है, भी हम नहीं तो है, एंटी वो हिंदू बोलते है। हैं कि हम सनातन खत्म करना चाहते हैं, हम वो तो- सनातन को खत्म करना चाहते वो हैं। तो कहते हैं सनातन मलेरिया की तरह है, कोविड-19 की तरह डेंगू की है, तरह है, मलेरिया के तरह है। डेंगू और की तरह हमारे है। यहाँ बहुत लोगों ने उस पर कमेंट्स किया है कि भगवान करे आपको ये सारी बीमारियां लगे। हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग उनके ट्विटर पे कह रहे। तो अब ये मैं कहना चाहती हूँ, अगर सनातन, डेंगू, मलेरिया और ये सब है और ये हिंदुत्व राहुल गांधी जी ने महाभारत या गीता में पढ़ा है तो उनका हिंदुत्व उनको बहुत बहुत लख लाभ हो। लेकिन लेकिन हमारे जो कार्तिक चिदम्बरम साहब हैं वो बोलते हैं कि उदयनिधि क्या नाम है उनका, स्टालिन जूनियर साहब जो हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई जब सनातन धर्म की बात तमिलनाडु में होती है, इसका मतलब है संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ जातिवाद से है, इसलिए सनातन की बात होती है। वो बात गलत नहीं है वैसे। पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार जो हैं, उन्होंने मतलब उनकी अगर रामायण के ऊपर उनके कथन अगर पढ़े जाएं, बाकी सब पढ़े जाएं, उनको तो बहुत बड़ा पुतला भी है चेन्नई में, श्री राम को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के, हनुमान को लेकर के, सीता जी को लेकर के उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द नहीं है जो इस्तेमाल ना किया हो। अगर वही फलसफा दोबारा अगर डीएमके लाना चाहती है तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है अभी तमिलनाडु में
उसको काउंटर करने के लिए जो उनका पुराना एंटी नॉर्थ इंडियन, एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी हिंदू, द्राविडियन फलसफा जो था, उसके पीछे जो लोग हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए वो बोल रहे हैं ऐसा। रानी जी देखिए सर, सनातन को खत्म करना एक तो ये नामुमकिन है। इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है ये जनता जानती है। सिर्फ वोट और राजनीति करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है और कहीं हद तक इस तरह के करतूतें भी उनकी है। लेकिन किसी जगह पे किसी की पॉपुलैरिटी रोकना या किसी के नंबर्स रोकना, ये ऐसे स्टेटमेंट देकर पॉसिबल होना मुझे नहीं जी। लगता पॉसिबल है। बट स्टिल दे आर ट्राइंग, बट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। हमारे भारत के लिए ये सही नहीं है। ये इस तरह की स्टेटमेंट जो मुंबई जैसे शहर में या जहां भी आकर ये इंडिया नाम की कंपनी आती है, एक टाइम पास वाली मीटिंग करके जाती है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा के जाती है और हम इन्हें सुनते हैं और सुनने के बाद हम सोचते हैं क्या ये हमारे देश की संस्कृति थी? क्या इस तरह से चलना चाहिए? ऐसे बहुत सवाल मेरे नहीं है, ये आज के यहाँ के सिटीजन के, यहाँ के लोगों के हैं। ये कहा जा रहा है रानी जी जी कि कहा क्या जा रहा है, वास्तविकता में विश्लेषण यही है, कहा जा रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कहा जा रहा है, सॉरी आई विड्रॉ दैट स्टेटमेंट। सीधी बात है, आपके जो तमिलनाडु प्रदेश के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, अन्नामलाई साहब, उन्होंने नाक में दम किया हुआ है डीएमके के, स्टालिन साहब के नाक में दम किया हुआ है, सरकार के नाक में दम किया हुआ है। वो ऐसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर आज तक कोई बीजेपी वाला कभी पहले पहुंचा नहीं है। तो बीजेपी का बहुत जबरदस्त अभी समर्थन हो रहा है वहां पे। तो शायद डर लग रहा हो डीएमके को कि किसी ना किसी तरह यहाँ बीजेपी ना घुस जाए, क्योंकि वो जो क्या नाम है प्रदीप जी उनका, खड़गे साहब के जो साहबजादे हैं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो जूनियर हाँ खड़गे जूनियर साहब, एक स्टालिन जूनियर साहब, एक खड़गे जूनियर साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब तमिलनाडु में कुछ और यूपी में कुछ और, मतलब तमिलनाडु में सनातन धर्म जो है वो HIV है और वो क्या है वो कोविड-19 है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, पता नहीं क्या कुछ है। और उत्तर प्रदेश में हम जनेऊधारी मतलब ब्राह्मण हैं, शिव भक्त हैं। तो ये क्या है, मतलब जरा बताएंगे की इसके बारे में? राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। ये देश का सुधार, देश का प्रगति लेकिन वोट नहीं इससे चाहता। पढ़ेंगे क्या? नहीं, वोट बैंक की राजनीति तो आप बोल दिया आपने, ये चौथी बार आपने इस्तेमाल किया ये टर्म। तो वोट पढ़ेंगे क्या? वोट बैंक की राजनीति तो वो करता है ना जिससे उसका वोट बैंक बनता है। ये तो वोट बैंक टूटने की बात कर रहे हैं। मतलब कौन वोट करेगा इसके कुछ लिए? नहीं बनना है सर, इनका कुछ नहीं बनना है, इनका कुछ नहीं बनना है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जी देश प्रगति चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, आने वाला युवा अपने देश को बढ़ते हुए देखना चाहता है, यहाँ का बुजुर्ग अपने देश को के ऊपर प्राउड करना चाहता है। तो ऐसे काम करने से कोई किसी के वोट चुरा लेगा, किसी को छीन लेगा, ये पॉसिबल नहीं। बट इतने निचले स्तर तक नहीं जाना चाहिए जितने निचले स्तर तक इनकी बातें जा रही है। रानी जी, G20 के माध्यम से ये हो गया कि जो यूनाइटेड नेशंस, उनका कहना है कि दिस इज अ ग्रेट इकोनॉमी। बीजेपी विल बी वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनका कहना था गीता गोपीनाथ यूनाइटेड नेशन से। और आगे जाके वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग कहने लगा कि इंडिया विल बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। इतने प्रेज जब हो रहा है तो कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर प्राइस राइज बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, हर प्रकार के जो कहता है फार्मर्स के तकलीफ है। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर एक G20 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग बोल रहे हैं कि द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी प्रॉब्ली, गीता गोपीनाथ यूनाइटेड नेशंस। एंड कांग्रेस इमीडिएटली सेम डे प्रेस रिलीज, मल्लिकार्जुन खड़गे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मोदी साहब कुछ कर नहीं पा रहे, फार्मर्स इशू में कुछ नहीं कर पा रहे, प्राइस राइज में कुछ नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी दिस, एक डिस्पैरिटी? डू यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ सिस्टम शुड, जब देश में कुछ अच्छा काम हो रहा हो, हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ कमेंट्स फ्रॉम कांग्रेस? देखिए सर, once you are sitting in opposition,
और उसके ऊपर भी आपके आंख पे पट्टी बंधी हो और आपने कुछ अच्छा नहीं देखना हो, जहां पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, वर्ल्ड बैंक का बंदा आके बोल रहा है कि 5वें स्थान पे देश में इकोनॉमी, तीसरे स्थान पे भारत स्टैंड कर रहा है, जहां सारा दुनिया देख रही है कि किस तरह G20 समिट यहाँ होती है, किस तरह हमारा देश कितना स्ट्रांग, कल हम साहब कौन से लाइन में खड़े होते थे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब चलते हैं उनके साथ तो लगता है कि हाँ, रियली ही इज अ बॉस ऑफ वर्ल्ड। जहां हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश स्ट्रांग हो रहा है। देखो, जब घर हमारा स्ट्रांग होगा तब हम दूसरों से लड़ पाएंगे, और ये जो है ये वही देखेंगे जो इनको नहीं दिख रहा है, फिर भी उसको दिखाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा ही है। लेकिन आपको मैं बताऊं सर, लास्ट 4 दिन से आप और मैं देख रहे होंगे, सारे चैनल्स को हम लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने भी या किसी भी न्यूज चैनल ने, आपके माध्यम से बोल रही हूँ, या किसी भी सिटीजन ने ये बोला हो कि ये एक खराब इवेंट है या ये जो इवेंट हो रहा है इस पे हमें घमंड या प्राउड नहीं है। तो इतने इनको तो शायद किसी ने रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा कि ये कांग्रेस वाले उस पे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी ओपिनियन क्या है। मुझे नहीं लगता किसी न्यूज चैनल में इसने इसको इम्पोर्टेंट दिया होगा या किसी सिटीजन ने दिया होगा। दिस इज द प्राउड रानी जी, सोनिया गांधी जी मैदान में उतरी है। सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है, बोले कि यू हैव नॉट टोल्ड अस द एजेंडा फॉर द स्पेशल पार्लियामेंट सेशन। सोनिया गांधी के इफ द एजेंडा इज नॉट सेट, सोनिया गांधी का कहना है, उस लेटर के माध्यम से सोनिया गांधी जी ने बोला है कि आप प्राइस राइज का एजेंडा रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एजेंडा रखिए, फॉलिंग इनकम्स का एजेंडा रखिए, फार्मर्स प्रॉब्लम्स का, एमएसएमईज जो बंद हुआ वो एजेंडा लीजिए, क्लीन चिट टू चाइना ऑन बॉर्डर इशू, बुडानी स्कैम, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो सोनिया गांधी राइटिंग ए लेटर ऑल ऑफ अ सडन, शी वाज इनटू अ पॉलिटिकल हाइबरनेशन, वो बीच में दिख ही नहीं रही थी। आज खुल के आके मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है। हाउ डू यू सी दिस? इज द एजेंडा नॉट सेट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द स्पेशल पार्लियामेंट सेशन? Yeah, being a spokesperson of BJP Maharashtra, still I don't know about the agenda. But आपने जैसा बोला ऐसा मैं भी सुन रही हूँ कि उन्होंने लेटर भेजा है, एजेंडा क्या है। वो पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर का राइट है, और वो जो एजेंडा करेंगे उस एजेंडे पे हाउस लगेगा, और मेरे ख्याल से वो सबके सामने रखा ही जाएगा आज ना कल। उस पे काम तो होना ही है ना, पार्लियामेंट जब लग रही है। आज ना कल नहीं, 15 तारीख को हो जाएगा। फिर हमेशा 2 दिन पहले होता है, जैसे बाय द वे पार्लियामेंट के किसी भी सेशन के पहले 2 दिन पहले स्पीकर साहब और राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो ज्यादातर लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं भाई ये प्रोग्राम है और इस तरीके से हम लोगों को करना जी। अब इनको जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन इनको याद आता है कि एजेंडा आज ही मिलना चाहिए। हमारे यहाँ भी सुप्रिया सुरे जी का स्टेटमेंट आज या कल में था कि हमें एजेंडा नहीं मिला है, हमें एजेंडा नहीं मिला है, हमें एजेंडा नहीं मिला है। अरे मिलेगा, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से आपके पास एजेंडा आएगा जी। लेकिन स्पेकुलेशन ये है कि भारत का नाम जो है, इंडिया का नाम अब भारत ही रहेगा। जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है इंडिया दैट इज भारत, अब वो हो जाएगा भारत दैट वाज इंडिया, ऐसा करके हो जाएगा। सुनने में ये आया है, क्या आपको ये सुनने में आया मैम? देखिए, मैं जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं जो पोयम गाती हूँ, जो जनगण मन गाती हूँ, उसमें मैं भारत ही गाती हूँ। भारत भाग्य विधाता जी, भारत भाग्य विधाता जी। तो मैं तो भारत ही गाती हूँ। तो आगे क्या लगना है, पीछे क्या लगना है, उसका ट्रांसलेशन क्या होना है, दिस डजंट मैटर। भारत इज भारत, ये आप और मैं हम सब एग्री करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने कहा ब्रसल्स में, दैट वी आर ओके विद ऑल द नेम्स। फॉर अस इंडिया, फॉर अस इंडिया इज इंडिया एंड भारत इज भारत, भारत इज आल्सो इंडिया। राजीव जी, मुझे वही समझ में नहीं आता है, जो बंदा 6 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, उसको भारत से तकलीफ क्यों हो जाती है? भाई, भारत भारत है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दुनिया के लिए है। जिसको समझ में आता है उसके लिए तो भारत ही है जी। और यहाँ पर एक और चीज है, ये सवाल ज्यादातर प्रदीप जी पूछते हैं, आज मैं पूछ रहा हूँ। आदरणीय सम्माननीय संजय राउत जी सबके बड़े अच्छे मित्र हैं, संपादक हैं सामना के। उन्होंने स्टालिन साहब को, स्टालिन जूनियर साहब को ये बोला है कि भाई देखो,
भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ज़रा ध्यान से बोलो आप क्या करें। तो क्या ये इंडिया अलायंस रहेगी या आपको लगता है इसका मतलब फेयरवेल हो गया है, अलविदा हो गया मैं है? प्रदीप जी और राजीव जी दोनों को यही बताऊंगी कि हमने तो देखा है मुंबई में उन सबको साथ में कैसे ममता दीदी हाथ छुड़वा के जाने लग गई थी क्योंकि चेयर ही नहीं थी। जिस अलायंस के सारे ही लोग प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो, उस अलायंस का फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ तक चलेगी, उसकी हालत क्या होगी। दो चीजें हैं, एक तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरी हर किसी के एजेंडे, हर किसी की पार्टी की टैग लाइन अलग अलग है। अब सिर्फ एक लेकिन उद्धव ठाकरे जी कहते हैं हमारे पास तो बहुत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास तो एक ही है, यानी एनडीए के पास तो एक ही है, इंडिया के पास तो बहुत है। सभी है। हाँ बहुत है, तो जब बहुत होते हैं ना तो कबड्डी की मैच भी होती है। जी रानी जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने एक कहा कि राम मंदिर का निर्माण, इसमें बीजेपी पूरे देश से अलग अलग जहां से राम मंदिर का निर्माण के लिए लोग आएंगे और उस सेरेमनी के बाद जब लोग लौट के अपने अपने एरियाज में जाएंगे, घर में जाएंगे, तो बीजेपी वांट्स टू क्रिएट अ गोधरा। दैट इज व्हाट उद्धव ठाकरे सेड। उद्धव ठाकरे जी बोल रहा है कि बीजेपी वांट्स टू क्रिएट अ गोधरा एंड बीजेपी वांट्स टू टेक पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। नाउ हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम उद्धव ठाकरे? Because why will anybody want the same kind of rights back again? Godhra and kya Godhra? How do you see this particular statement? Ram Mandir, Godhra. प्रदीप जी, इतना बड़ा राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हर कोई श्रद्धा से उसको नतमस्तक हो रहा है। एंड आई वांटेड टू नो दैट ही हैव अ स्क्रिप्ट अबाउट दिस। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही इज गिविंग? अरे कुछ तो शर्म करो यार आप। मतलब 2 साल आप घर में बैठे रहे और कोई काम कर रहा है तो इतना गंदा आप बोलोगे कि देश के लोगों के जान के ऊपर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हो, वो भी उस कार्यक्रम के पहले। मतलब कितना शेम बोलना चाहिए ना, उतना कम है इस स्टेटमेंट के लिए। जहां पे श्रद्धा से लोग जाते हैं, जाएंगे, राम जी के दर्शन भी करेंगे, राम जी का स्थापना भी होगा और लोग बड़े भक्ति भाव से अपने घर में वापस भी आएंगे। ये किस तरह का हिंदुज्म है? ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज, देयर इज अ टेक्निकल डिफिकल्टी हियर, वेरी स्मॉल बट इट्स अ टेक्निकल डिफिकल्टी। गोधरा में तो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनकी जान गई थी। मतलब जो ट्रेन जलाई गई थी उसमें 48 प्रदीप के 50 थे, कितने 50 के 52 थे स्वयंसेवक थे सर जी। वो तो सब कार सेवक थे जो अयोध्या से सेवा कर करके वापस आ रहे थे। तो मतलब उद्धव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं को मारेगी। मतलब पूछना चाह रहा हूँ तो क्या अभी मैं आपसे वही बता रही हूँ, मैं आपसे वही कह रही हूँ राजीव जी, जिनके परम पूज्य पिताजी बाला साहब ठाकरे जिन्हें हम हिंदू सम्राट कहते हैं, उनके बेटे से इस तरह की स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हो कि दर्शन होंगे, लोग वापस आएंगे और फिर ऐसा हाथ पात होगा, इस पे तो इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट दे तो सकता क्यों नहीं करते? सरकार आपकी है। होगा सर, सब होगा, सरकार आपकी सब होगा, सब होगा। मतलब एक मिनट, so उद्धव ठाकरे will be arrested, we can say that on BJP's behalf। साहब मैं किसी के बिहाफ पे ये नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा ये पर्सनल कहना है कि इस तरह की, जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता, जिस तरह की स्टेटमेंट, जला देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, इस तरह के अभद्र जो हम बड़े बड़े सभाओं में से बात करते हैं, ये ऐसा तो नहीं ना कि मैंने घर में एक आदमी से बोला हो। ये एक बड़ी सभा, जनसभा चल रही है, उस जनसभा में आप इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं, which is not acceptable। But by the way, this fits the definition of hate speech and this fits the definition of creating enmity between communities. So Mr. Uddhav Thackeray is liable. On that there is no doubt. उद्धव ठाकरे जी ने जब ये स्टेटमेंट कही है, anybody can go to court and take him to task as to why he should not be arrested. Let's be very clear. अगर मैं आज ऐसी स्टेटमेंट बोल दूं, मुझको तो अरेस्ट कर लेंगे साहब, कोई तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे। आप भी अगर ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपके खिलाफ भी केस हो जाएगा। रानी जी सर, ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आपने क्या कहा है?
आपने उस जनता को, जो ये तो जनता भड़काऊ वहां भाषण हो जाने गया वाली ना, है, भड़काऊ भाषण हो गया है तो। भड़काऊ भाषण से ज्यादा इट्स लाइक समवन राइट द स्क्रिप्ट एंड ही इज रीडिंग। कल क्या होगा जी आप और मैं नहीं बता सकते, वो हमें बता रहे हैं। सो मेनी डाउट्स कैन बी क्रिएटेड, इज ऑल अबाउट द thought process, what thought he's taking in his mind, and the way he's going, it's not good for him also. Rani ji, over the days, I mean over the few days, उद्धव ठाकरे जी पर्सनल अटैक्स देवेंद्र फडणवीस जी पे बहुत करने लगा है, वेरी वेरी पर्सनल एंड वेरी पर्सनल अटैक्स। तो हाउ डू यू सी इट? और फिर आगे जाके कह रहा है कि हमारा लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारा लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा लड़ाई मित्र परिवारवाद के खिलाफ है और हम लड़ते रहेंगे। यू नो, हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ परिवारवाद? ही इज टॉकिंग अबाउट फाइटिंग भ्रष्टाचार, ही इज टॉकिंग मित्र परिवारवाद। How does Uddhav Thackeray manage to convince, and how the BJP sees this kinds of statement? हमारी लड़ाई, उद्धव जी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के वजह से है। उनकी और कोई लड़ाई नहीं है, उनका कोई और एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा मुंबई महानगर पालिका है, उनका एजेंडा उनका बेटा है, मेरा घर मेरा परिवार सुखी संसार, उनका एजेंडा ये है। उनका एजेंडा देश या महाराष्ट्र नहीं है, उनका एजेंडा हमारी जनता नहीं है। उनका एजेंडा वो है कि मेरा जो मातोश्री, जहां लोग आके साष्टांग नमस्कार बाला साहब ठाकरे को करते थे, वो मुझे भी करे। आज उद्धव जी दर दर घूम रहे हैं और हर जगह जाके किस तरह उनकी हालत है आप और मैं देख रही हूँ। मेरा नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके बारे में बोलने के पहले इनको सोचना चाहिए। और अगर ये फिर भी बोल रहे तो इनको, जो ये 2 साल घर के अंदर बैठे थे ना, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं घर कोमड़ा, घर में बैठ के सरकार चलाने वाला मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र ने पहली बार देखा है। इसलिए जो आदमी दिन रात फील्ड पे बैठकर घूमकर काम कर रहा है, उसके लिए इस तरह के अभद्र शब्द कहना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही के स्टेट में और आज सुबह के भी स्टेटमेंट में कहा कि इतने नीचे मत गिरो कि बाद में हम कार्यकर्ता को रोक नहीं पाए। ये एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, उनको इस तरह की भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोग इनको घर कोमड़ा, कोई और कुछ, कोई कुछ, इस तरह के इनके भी नाम रखे गए हैं। लेकिन हम बहुत संस्कारी है, हमारी पार्टी संस्कार से चलती है, हम इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए ठीक है, नहीं तो उद्धव जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। रानी जी, आखिरी सवाल ये, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने शायद कोई एनडीए की मीटिंग ली थी, जिसके अंदर ऐसा आशीष शेलार साहब ने कहा है कि ये तय हुआ है कि मिनिमम 40 सीटें और टारगेट है 45 सीटों का लोकसभा में 48 में से इस बार एनडीए के लिए। तो आपको लगता है कि आप ये अचीव कर पाएंगे? सर, हम 45 प्लस जाएंगे। 45 प्लस आउट ऑफ 48? 45 to 48 हम जाएंगे सर। 45 to 48? हम काम कर रहे हैं ना सर, हम कब बोल सकते हैं? जब हम काम कर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री की रेस में सिर्फ मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, सीट कहीं से भी आए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, इसका अलाइव चल रहा है हमारे यहाँ सर। हम ग्राउंड लेवल पे, आप ही के चैनल पे शायद मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ जी, क्योंकि जिस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह के प्रवास, जिस तरह के हम लोगों से कनेक्ट होकर उनकी तकलीफें, उनकी सारी चीजें हमारी सरकारों में पूरी कर रहे हैं, वो आसान टास्क नहीं है। हमारा ग्राउंड लेवल तक का कार्यकर्ता दिन रात अपना इस देश के लिए दे रहा है, तो उसका इफेक्ट तो चुनावों पे पड़ेगा ही ना। Wonderful. Wonderful. So the BJP expects to win at least 45 seats and may actually win all 48 as well. That'll be nice, because after all you did it. It's not as if you've not done it before. You've done it in Rajasthan earlier. राजस्थान में 100% सीट्स आपकी गई थी 2019 में, और मध्य प्रदेश में भी 29 से 26 सीटें आपके पास आई थी पिछली मरतबा। सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू मैम। एक कोट करना चाहूंगी राजीव जी। जी, छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है। बोलिए ना प्लीज। हम जब छोटे छोटे घरों में भी जा रहे ना, और हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर कोई बीजेपी का बैच नहीं है, स्कार्फ नहीं है, स्टिल इफ वी आर आस्किंग देश का पंतप्रधान कौन होना चाहिए, तो बोलते नरेंद्र मोदी होना चाहिए।
नो वन, मतलब 99 नहीं, 100% लोगों ने एक ही बात कही है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी। So, और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात कीजिए तो हर एक को ये बोलता है कि हम जिस घर में जाते हैं हर एक को ये बोलता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, वो कहते हैं राहुल गांधी होना चाहिए। नहीं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड, यू आर द न्यूज पर्सनैलिटीज, बट मैं आपसे भी पूछूंगी तो दिल में कहीं ना कहीं तो अपने देश का पंतप्रधान ऐसा ही होना चाहिए जो बॉस हो। ये आपको भी लगता होगा। Right, ma'am. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Great pleasure, as always, talking to you. So nice of थैंक you. यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिव, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत. Thank you. थैंक यू सो मच। Wonderful, wonderful talking to you. It's always a pleasure having you on the show, man. Thank you very much. Well, so 45 out of 48, बिल्कुल सर। or maybe 48 out of 48. I think our friend Mr. Nizamuddin Rain at the moment with us. I'm so sorry, this thing seems to be giving me a bit of a problem. He's not connected yet. I think he will be with us in just a little while. I'm sure Mr. Nizamuddin Rain will have something to say about it as far as the BJP's ambition of winning 48 out of 48 is concerned. क्योंकि प्रदीप जी, अगर किसी भी एंगल से अगर देखा जाए, क्योंकि शिवसेना ए, शिवसेना बी, एनसीपी ए, एनसीपी बी, and the only other party which is completely and totally intact is Congress. So all the other vote is kind of divided. So there is a possibility that there will be some division over here. Right. So Sir, if you see that earlier MVA projection जो था, MVA when they were all one together, they were easily every agency was giving a victory for MVA. But then what has happened after that? You found Uddhav Thackeray breaking up. You found Sharad Pawar breaking up. Now the point is, will these votes, now BJP has to work on that. Will Sharad Pawar's vote be taken by Ajit Pawar? Will Eknath Shinde manage to take all Bala Saheb Thackeray's vote share? Now these are the challenges. And the other thing, Pradeep ji, and the other thing. Challenges before the BJP. प्रदीप जी, एक और चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट देखो, क्या है साहब, कि जब आप अलायंस में होते हैं तो सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे अजीत दादा पवार साहब का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ बारामती से, फॉर इंस्टेंस, बारामती में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीपी का ही वोट उनको जाना चाहिए, बीजेपी का भी वोट उनको मिलना चाहिए। Exactly. क्या वो बीजेपी का वोट ट्रांसफर होगा एनसीपी को? मतलब दैट्स अ वेरी, The BJP has to really work on this. Now, when Amit Shah came here and वो cooperative movement को boost करने वाले एक meeting लिया था, जी। that was something that it moves the votes away because people are concerned अपने sugar mills चालू हो जाए, अपने जो बंद cooperatives है वो बंद चालू हो जाए, and Amit Shah promised that मैं इतने 1000 करोड़ में डालूंगा and all those kind of things. Let's ask निजाम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर, बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। तो राहुल गांधी साहब ने ब्रसल्स में कहा, बेल्जियम में, कि भाई देखिए हमें तो हर नाम पसंद है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान भी पसंद है, भारत भी पसंद है, इंडिया भी पसंद है। अब ये नाम क्यों बदलना चाहते हैं मालूम नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नाम बदलना चाह रहे हैं सर? पहले से नाम तो है ही भारत हमारा, अरे हिंदी में तो भारत ही बोलते हैं। नहीं, अब मोदी जी को ये डर है कि जिस तरह से पूरे देश में बदलाव हो रहा है। सर जरा जोर से बोलिए प्लीज। जिस तरह से राहुल गांधी की वजह से आप देश में बदलाव हो रहा है जी, हो रहा है, तो मोदी जी और उनकी मंडली को ये लगने लगा है कि अगर इंडिया नाम रहेगा तो उसका जो है पब्लिक में एक अच्छा इम्पैक्ट होगा और लोगों को नाम याद करने में आसानी होगी और उसका असर चुनावों में पड़ेगा, तो इसके लिए उसका बेनिफिट होगा। इस डर के मारे मोदी जी और उनकी मंडली जो है उन्होंने रातों रात एक प्रपोजल लाया कि देश का नाम बदल दो। तो वे कितने जगहों पर नाम बदलेंगे? राहुल गांधी कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। इस देश में मेरा ख्याल दुनिया में अकेला देश है जिसके बहुत सारे नाम है, आर्यवर्त नाम है, हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, इंडिया नाम है। तो अब सब चीजों को खत्म करके एक जगह लाना इतना कोई आसान तो है नहीं, ये कोई शेख चिल्ली का काम नहीं है तो आज कह दिया कल हो जाएगा। अरबों अरबों डॉलर से ज्यादा पैसा इस नाम को बदलने के बाद दूसरी चीजें करने को लगेंगी।
तो देश को तबाह करने का अगर प्लान मोदी जी लेके आ रहे हैं तो ये पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी ने तो अच्छी बात कही, और हमारा जो अलायंस का जो गठबंधन बना है, जिसका इंडिया बन रहा है, उसमें जो है आई डॉट या ना डॉट आई डॉट या ना, तो उसके अंदर डॉट डॉट है। अब कोई आदमी पढ़ रहा है अगर इंडिया, तो आप कितनी चीजों को आप खत्म करेंगे और कितनी चीजों को बदलेंगे। इससे उनको कोई राजनीतिक भला नहीं होने वाला, इसका फायदा राहुल गांधी और लेकिन जो पोस्टेज स्टैंप होती है ना साहब, जो पोस्टेज स्टैंप होती है उसमें तो भारत लिखा होता है, इंडिया भी होता है, भारत भी होता है, तो होता ही है साहब। सब जगह लिखा है, सब जगह लिखा है। लोग आज भी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति की ही बात करते हैं, आज भी लोग बात तो करते हैं, लेकिन जहां अगर जिन चीजों का इन्होंने खुद से कमर्शलाइजेशन जो किया था, अभी एयर इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक में जो है इंडिया, मैं इंडियन करेंसी को आदेश देता हूं, ऐसी जितनी चीजें हैं, कितनी चीजों को आप बदलने तो जाएंगे, एयर भारत हो जाएगा। हाँ, तो ये सब चीजें, लेकिन अब नहीं हो सकता, जरूरत है। अभी नहीं हो सकता, और अगर क्योंकि अब तो वो टाटा के पास है, रतन टाटा के पास है। तो अब अगर कोई चीज उनको बदलाव करना था, तो उसके लिए देश को पहले राजी करो ना। आप अपने मर्जी से डिक्टेटरशिप लाद रहे हैं, और डिक्टेटरशिप का रिजल्ट बुरा आएगा। देश पहले से तकलीफ में है, सिर्फ 9 सालों में इतना ज्यादा कर्ज भारत के ऊपर हो गया है कि अगर ये भी अभी जो नई नोट छपकर आई और पुरानी नोटें अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई रखी है, जो छपाई हुई है उसका पैसा सरकार अभी तक प्रिंट का नहीं दे पा रही है। निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी बेल्जियम में थे, बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आज खतरे में है। बोले कि इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी लेड गवर्नमेंट अटैक कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस लोकतंत्र को यहां पर प्रिजर्व करके सेव कर सकता है। राहुल गांधी जी कहना, राहुल गांधी जी आगे जाके उन्होंने कहा कि मैं गांधी का इंडिया, इंडियाज गांधी, नॉट गोडसेज गांधी, गोडसे का गांधी से मैं बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता हूं, मैं इंडिया, गांधीज इंडिया। तो ये सावरकर, गोडसे ये वापस आएंगे तो क्या आपके यहां दरार नहीं होंगे निजामुद्दीन साहब? देखिए, हमारे यहाँ दरार होने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने हमारा एजेंडा देखा होगा कि जब समिट 3 मुंबई में हुआ, तो जो चीजें तय हुई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तय हुई है। हम किसी के आइडियोलॉजी को बदलने नहीं जा रहे हैं, ना हमें ये अधिकार है कि हम किसी के आइडियोलॉजी को बदले। हमारा काम है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका काम है कि देश को एक स्वच्छ सरकार दे, और देश में जो लोकतंत्र का राज होता था उस राज्य को वो बचा कर रखे। अब आप देखिए, अभी आपने अपने सवाल में कहा कि राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी संस्थानों को तबाह करने का काम ये हुकूमत कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज वो कुछ भी निर्णय लेते हैं, आदमी दिन भर वो बहुत बड़ा करप्शन के चार्ज में होता है, और जैसे ही वो बीजेपी के खेमे में जाता है और वो सदस्यता लेता है, सारा करप्शन धुल जाता है और वो उसके ऊपर से सारे मुकदमा हटा लिए जाते हैं। तो ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट बॉडी थी, उसका सरकार से संबंध नहीं था, आपने वहां भी बदमाशी शुरू कर दिया। इसके अलावा जो जो स्वायत्त संस्थाएं हैं आप उनको नुकसान कर रहे हैं। तो इसके ये राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो हमेशा सच बात करते हैं। राहुल गांधी झूठ बात कभी नहीं करते, और बाद में वो देश देखता है और खुद बीजेपी एक्सेप्ट करती है कि राहुल ने जो कहा है वो होना है। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी ने कहा था इसका बुरा असर होगा। नोटबंदी के बाद जब कोविड आया तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने कितने बेहतर तरीके से उसको चेंज करने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं किया। ये खाली ताली बजवाने में लगे रहे और देश को गुमराह करते रहे। आज भी इनकी मंडली देश को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए ये तयशुदा बात है कि इस देश में बदलाव 2024 में आ रहा है। आप जनता के सामने जाइए। मैं ये निजामुद्दीन राइन कांग्रेस के प्रवक्ता है इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद जाइए, जनता के बीच से सर्वे निकाल कर लाइए। आज उनकी हालत ये हो गई है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आरएसएस का एक बड़ा घटक, उनके 3 लोग टूट के नई पार्टी का गठबंधन कर रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर 46 से ज्यादा नेता बीजेपी के कांग्रेस में भाग कर आ गए हैं। तो ये बदलाव तो चालू हो गया है। लेकिन निजामुद्दीन रईन साहब, सॉरी प्रदीप, निजामुद्दीन साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब की आज की स्टेटमेंट है कि आप मुझे वापस लेकर के आइए और मैं एलपीजी गैस सिलेंडर 450 में दूंगा। तो 15 साल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं दिया?
आज अगर वो कर्ज में डूबे हुए भारत को और बर्बाद करना चाहते हैं तो 15 साल में क्यों नहीं दिया उन्होंने? अगर वो ये कह भाई वो सरकार में नहीं, अगर ये बात मैं कहूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं जनता से कहूं साहब आपको 400 सिलेंडर दूंगा, तो जनता सोचेगी भाई इसको मौका देना है। 15 साल जनता ने आपको मौका दिया तो आपने क्यों कब नहीं किया? तब तो आप अपने दोस्तों की मदद पे लगे रहे, तब तो आप लूट रहे थे। आप मध्य प्रदेश को आपने तबाही के कगार पे खड़ा कर दिया। आप मध्य प्रदेश, अरे भाई आप लोगों ने परेशान करके रख दिया ना, इसलिए कांग्रेस ने परेशान करके रख दिया है। 550 रुपए का सिलेंडर आप बेच रहे हैं राजस्थान में, 480 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं कर्नाटक में। सर अगर जनता को हम फायदा पहुंचा रहे हैं तो उन्हें भी पहुंचाना चाहिए। उनको तो बजाय ये वादा करने के कि मैं सत्ता में आऊंगा तो करूंगा, उनके पास तो अभी कर देना चाहिए था उनको। जब मोदी जी को लगा कि देश में हम हारेंगे तो रक्षाबंधन पर उन्हें बहनें याद आ गई। जब बहनें याद आ गई तो 200 सिलेंडर में कम कर दिया, तो जब भाई याद आ जाएंगे तो 400 कम कर देंगे ना। अभी तो उनको सिर्फ बहनें याद आएंगी। निजामुद्दीन जी, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सोनिया गांधी जी ने कहा कि आपने एजेंडा खुलेआम घोषित नहीं किया कि क्या एजेंडा है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सोनिया गांधी जी ने आगे जाके कहा लेटर में कि आपके पास एजेंडा नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एजेंडा रखिए। आप प्राइस राइज एजेंडा रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एजेंडा रखिए, फॉलिंग इनकम्स एजेंडा रखिए, फार्मर्स प्रॉब्लम्स, एमएसएमईज जो बंद हो गए, क्लीन चिट टू चाइना ऑन बॉर्डर इशू, मोडानी स्कैम, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी इस पर विचार करेंगे या कुछ आगे जाकर इस पे कुछ एक्शन लेगा? कैसे देखते हो आप निजामुद्दीन जी? देखिए, सोनिया गांधी एक जवाबदार नागरिक है इस देश की, और उन्हें हमेशा से अच्छी बातें करने का रहा है और उन्होंने हमेशा अच्छे प्लान्स लाए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो संसद में गिर गई थी बीमार होने के बावजूद। गरीबों के राशन का जब प्रश्न आया था और वो संसद में पास होना था, वो उन्होंने किया और वो जिम्मेदारी से लगी नहीं। लेकिन मोदी जी को खुद जानना चाहिए कि जब संसद शुरू होता है तो जो एजेंडा संसद में डिस्कशन होने होते हैं या जो विषय लाए जाने होते हैं, वो सारे अपोजिशन के सांसदों को पहले भेजना पड़ता है। एक पैकेट होता है जो सचिवालय स्वयं तैयार करता है और उन सारी चीजों को जनता के सामने जाने के लिए वो सांसदों को भेजते हैं कि सांसद अपना होमवर्क करें और जब पार्लियामेंट में आए और इस पर बहस हो या इस पर चर्चा हो तो उसमें वो बात कर सके। अब आपके मन में बेईमानी है, यानी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपोजिशन को रातों रात भी खबर नहीं चले और संसद शुरू होगा और उसी दिन बताएंगे। यानी कोई भी आदमी अगर संसद के उस चर्चा में भाग लेना चाहे तो उसे विषय का ही पता नहीं हो। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरह से गलत इस्तेमाल है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और उसमें लीडर अपोजिशन का पता नहीं है, उसमें किसी सांसद से चर्चा नहीं है। तो ये तो सब गलत बातें हैं ना। लेकिन इसके पीछे क्या वजह क्या है निजाम साहब? इसके पीछे क्या वजह है? हो सकता है कि जो डिटेल्ड एजेंडा है वो 2 दिन पहले दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल सेशन का पार्लियामेंट के, वो ज्यादातर जो भी विपक्ष के नेता होते हैं उनके साथ मतलब बातचीत हो जाती है कि भाई इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जो डिटेल्ड एजेंडा आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर ये तक नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? नहीं, इसके पीछे है, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई बड़ी घटना वो करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने जो अपने साथियों से बात की और कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बात की, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उनका दिमाग अभी काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि राज्यों की जो ताकतें हैं वो बर्बाद हो जाएं और वो राज्यों को बर्बाद करने के लिए जो 5 राज्यों को इलेक्शन थे और 5 और 7 राज्यों को और जोड़कर लोकसभा चुनाव के साथ कराने की उनकी तैयारी हो गई है। आज मीडिया ने इस बात पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है कि लोकसभा चुनाव के साथ राज्य सरकारों के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की बात होती है और उस पर मोदी जी काम कर रहे हैं तो ये देश को और बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। इससे ये होगा कि वो अपनी सत्ता पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश है और देश को गुमराह करने और दूसरे राजनीतिक दलों को बर्बाद करने का वो काम करना चाहते हैं। इसलिए बगैर किसी एजेंडे के धोखे से ये काम हो रहा है और ये देश के लिए हित में नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी ने उनको वो एजेंडे भी बताए कि अभी जो देश में लागू है, खास करके मणिपुर का विषय, आज भी मणिपुर में दंगल हुई है, आज भी मणिपुर में हिंसा हुई है, आज भी लोग मरे हैं।
तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जिससे संसद को संसद सत्र अगर स्पेशल आप बुला रहे तो ये विषयों को आपको जोड़ना चाहिए। देश कहाँ किस कगार पर खड़ा है, क्या हालत है, उस पर हमको चर्चा करना चाहिए। अभी उन्होंने एक सम्मेलन किया है G20, तो G20 के सम्मेलन में क्या रिजल्ट निकल कर आया उस पर चर्चा करना चाहिए। आज उस पर आप खुद सोचिए कि बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो जाके तुर्किश में भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको जो है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। और एर्दोगान जो है वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि धर्म के मामले में भारत के मामला अच्छे नहीं है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के बजाय अगर खुफिया तरीके से या धोखा देकर लोगों को कोई काम करने वाले हैं तो उनका एजेंडा उनको ही पता होगा। लेकिन ये बताएं, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, जिसमें शायद 5 के साथ स्टेट इलेक्शंस को भी लोकसभा के साथ करा दिया जाएगा, लेकिन वो तो बैकफायर भी हो सकता है ना सर, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में बहुत फर्क होता है ना निजाम साहब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ तो आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। मतलब यहाँ पर हो सकता है जो बीजेपी को 2019 में लोकसभा की इतनी अपार सीटें मिली थी, शायद स्टेट इलेक्शन की वजह से ना मिले। तो उनको ये मालूम नहीं है क्या? है उनको, लेकिन जो ताकतें हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बजाय 5 इलेक्शन के नहीं बल्कि बहुत सारे राज्यों के चुनाव वो 5, 7, 8 महीना पहले करा देना चाह रहे हैं। वो तोड़कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम छत्रपति राजनीति जो है उसे हम खत्म करेंगे। उसमें उनके बीजेपी के भी 2-3 स्टेट आ रहे हैं, ऐसा नहीं वो कुछ नहीं आ रहे, लेकिन ये इस देश के लिए अभी ठीक नहीं है। इस पर पहले वर्किंग हो, पहले काम हो, उसके बाद कोई विषय आए। अभी तो उनको जो 5 राज्यों के चुनाव ऑलरेडी घोषित करना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में ड्यू है। तो बिफोर 6 मंथ कम से कम चुनाव के बारे में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो वो प्रक्रिया भी अभी नहीं चल रही है, तो खतरा है जो कुछ गलत करना चाहिए। निजामुद्दीन जी, G20 बीजेपी कह रहा है कि जबरदस्त सक्सेस है। G20 जबरदस्त सक्सेस है इसलिए कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। बीजेपी का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू बी ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सक्सेसफुल जो सक्सेस है G20 का, बीजेपी का कहना है। मगर कांग्रेस का कहना है कि 1 मैन 1 गवर्नमेंट 1 बिजनेस ग्रुप, यही बीजेपी का एजेंडा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे जाके कहा कि आज तक जो भी आपने G20 के एजेंडा में रखे थे, 2014 2018 में मोदी साहब ने कहा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनको देश एक्स्ट्राडिट कैसे करे, मगर जयराम रमेश का कहना है कि आज भी नीरव मोदी बाहर है, ललित मोदी बाहर है, विजय मल्ल्या बाहर है, चोकसी बाहर है। तो हाउ डू यू सी इट? एक तरफ है सक्सेस ऑफ G20 और दूसरा जो भी डिसाइड किया था उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए, नतीजा निकलने का कोई विषय ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि G20 में उन्होंने जिस तरह के पैसे की बर्बादी की है, मैं ये कहता हूं कि भारत में सम्मेलन हुआ, उसके लिए भारत को बधाई के पात्र है कि ये सम्मेलन की हमें अध्यक्षता करने को मिला। लेकिन अध्यक्षता करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए था वो कहीं दिख रहा है क्या? विदेशी आकर आपके मुल्क में आपसे सवाल कर रहा है और आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप उसके लिए तैयार नहीं है। आप ऐसी क्या चीजें छिपाना चाहते हैं जो किसी को हम बताना नहीं चाहते। और एर्दोगान की अगर आपने पूरी स्पीच सुनी हो तो धर्म वाले विषय पर जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, जिस तरह से लोकतंत्र की तबाही पर बाइडेन ने कहा है, तो ये सब बातें जो G20 में कोई चीज बहुत निकल कर नहीं आया। और देश के लिए G20 कोई नई चीज नहीं है। इंदिरा गांधी ने 43 साल पहले नॉन अलाइंड 82 जो है उन्होंने दिल्ली में किया था। उस जमाने में विज्ञान नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो कॉन्फ्रेंस वहां हुई थी, और 1983 में चोगम हुआ था सर, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नहीं, 1982 की बात कर रहा हूँ। 1982 में नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस जो है जी दिल्ली में हुई थी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 1982 में नाम और 1983 में चोगम। मैं चोगम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1982 नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 80 से ज्यादा मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे यहाँ
और उसमें क्रस्टो से लेकर सारे लोग थे और बहुत सारी बातें उस पर चर्चा हुई। पूरे देश ने देखा कि इंदिरा गांधी की वो ताकत थी जो उन्होंने पूरी दुनिया में, और इनकी ताकत का ये है कि ये तो अपनी अपनी जगहों से अपने लोगों को ले जाकर माइक्रोफोन बजवाते हैं, दूसरे मुल्कों में खुद यहाँ से 1000-2000 इंडियंस को अपने ले जाते हैं और उनको वहां दिखाने की कोशिश होती है कि भारत का डंका बज रहा है। तो विश्व गुरु जी तो झूठी बात कर रहे हैं ना। आज देश पूरा कर्जे में डूबता चला जा रहा है। 7 वर्षों में, यानी इनकी जो सरकारें आई हैं 9 वर्ष के लिए, 1 वर्ष अभी बाकी है, इतना कर्ज हो गए जितना 70 वर्ष तक इस देश में कर्ज नहीं था। ये मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आप उनसे देख लीजिए, कम से कम 1000 से ज्यादा उद्योगपति अब तक छोड़कर भारत जा चुके हैं, दूसरे मुल्कों में बस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह से सर उठा रही हैं, आगे उसका रिजल्ट बुरा होगा। तीसरी चीज, अभी आपने जिक्र किया ललित मोदी और दूसरे लोगों का, अभी आपने देखा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तीसरी शादी करते हैं और उसमें ललित मोदी जाकर वहां बैठा है और ये जो है भारत के सॉलिसिटर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चोर मौसी और भाभी वाला जो किस्सा है, इनको सारी जानकारी है और उसके बाद उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अगर उन्हें इच्छा होती और वो बेईमानों को पकड़कर जेल के शिक्षे में लाना चाहते तो अब तक क्यों नहीं लाए? बजाय लाने के जो लोग हैं उनके लिए भागने का रास्ता बना रहे हो, तो देश में कैसे डेवलपमेंट लाएंगे? निजामुद्दीन जी, घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, विरोध में है। ये आरोप है आप पर, ये आरोप है कि आप जूनियर स्टालिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जूनियर स्टालिन ने जिस प्रकार सनातन धर्म कहा कि उनको इरेडिकेट करना चाहिए, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, अलग अलग बीमारी है, वैसे ही सनातन धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड है क्या? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, माफ करिए। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि धर्मनिरपेक्ष भारत हो और धर्मनिरपेक्ष भारत में सभी धर्मों का सम्मान हो। रही बात उनकी बात का, वो कोई हिंदू नहीं है क्या? वो स्टालिन जो है वो हिंदू नहीं है क्या? तो उसमें निजामुद्दीन राय क्या आपको राय देंगे? दूसरी चीज ये है कि जहां तक घमंडिया शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, उनके जो है उनको लगाम नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को। आज आप देखिए वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मिसेस गांधी के लिए जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद है उन्होंने किस तरह की बेहुदा बातें कही थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो इतनी, जैसे लोग बच्चे कहते हैं कि जब मोदी जी की तस्वीर आती है तो बच्चे हंसते हैं, बंद कर देते हैं, वो कहते हैं अगर अभी कुछ भी बकवास करेंगे। तो प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा रही है, आप अटल जी का भाषण सुनिए, पूरा देश जो है अटल जी का भाषण सुनता था। इसके बावजूद कि हम लोगों को राजनीतिक विरोध होने के बावजूद अटल जी का भाषण सुनते थे, क्योंकि उसमें बड़ी सभ्यता और शालीनता की बात होती थी। आज मोदी जी जो भाषण करते हैं, आप देखिए, कोई लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है? आप किसी पढ़े लिखे आदमी से देश में पूछिए तो आपको समझेगा कि किस तरह के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और न वो बल्कि उनके मंत्रिमंडल के साथी भी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें कहना कि सनातन धर्म के लिए गठबंधी जो है घमंडिया गठबंधन सबको कर रहा है, आज उसमें सारे हिंदू ही है ना। मुस्लिम एक महबूबा मुफ्ती और फारूक को छोड़कर कौन है उसमें? तो सारे हिंदू ही है ना। निजाम साहब, स्टालिन साहब हिंदू नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। मोदी जी तो सारे दलितों को भी है ना। तो जिस तरह की वो इशू है उस पर मोदी जी को बात करना चाहिए जी। लेकिन तो फिलहाल जहां तक के इंडिया का प्रश्न है, इंडिया अलायंस का प्रश्न है, बार बार जो बीजेपी इंडिया अलायंस का जान करके मजाक उड़ा रही है, कभी आपको इंडिया अलायंस बोलते हैं, कभी घमंडिया अलायंस बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपका प्रभाव नहीं होता तो बीजेपी शायद आपके ऊपर कमेंट करती नहीं। वो तो दूरबीन लगा करके देख रहे हैं आपको कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी कैसे बैठी हैं, कैसे हंस रही हैं, किससे बात कर रही हैं, आप किससे बात कर रहे हो। आपने देखा होगा कि पिछली बार संसद में बंदर कैसे डमरू के लिए पीछे भागता है और मदारी उसको बजाता है, इस तरह के भी हालात संसद में पैदा हुए थे, जहां वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और हाथ से हिला रहे थे, लेकिन उनको ये लगा था कि देश की सारी जनता ने उनको चुन लिया है। लेकिन आज आप हालात देखिए कि
कम से कम इस 36 राज्यों में से 11 मुख्यमंत्री तो वहां मौजूद रहे, दूसरे राज्यों के लोगों की भी हालत है कि वहां सत्ता से वो बेदखल हो रहे हैं। अगर ये चुनाव हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, तो आप देखेंगे ये 5-7 राज्यों से भी उनकी विदाई हो जाएगी। तो एक तरह से वो पूरे राज्यों से हर जगह उनका सफाया हो रहा है। थोड़े दिन के बाद ये मानसिक बीमार हो जाएंगे जितने लोग हैं, फिर ये अपने सर का बाल नोचेंगे, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। जिन जिन परिस्थितियों में राहुल गांधी का इन्होंने मजाक उड़ाया था, उसी राहुल गांधी की बात को दुनिया ने सुना और उसी पर अमल हुआ, और वही चीजें आज देश में अच्छे से रही हैं। निजामुद्दीन जी, एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, और उन्होंने बोला कि मैं खुद पूरे लद्दाख में घूम रहा हूं, यहां से एक इंच लद्दाख का चाइना के पास नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर मिश्रा, उनका कहना था। और आगे जाके उमर अब्दुल्ला, मैं ये भी बोलता हूं एक मिनट, उमर अब्दुल्ला जी को जब पूछा कि आज कश्मीर का सिक्योरिटी पोजीशन क्या है, बोले कि इस चीज को मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी आज सेफ्टी है कश्मीर में। बिजनेस, उद्योग, होटल, इंडस्ट्री, टूरिज्म प्रोटेक्टेड है, ये सेफ, उनके मन में कोई डर नहीं है, भयभीत नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना, ब्रिगेडियर एलजी का कहना, तो इसको कैसे देखते हो कि 370 आर्टिकल निकालने ये एक सक्सेस था, कैसे देखते हो आप निजामुद्दीन जी? अगर से मैं आपको सीधी से एक ही सवाल के आपके जवाब, और मेरा सवाल कि अगर 370 से सारा सुधार कश्मीर में हो रहा है या हुआ, तो क्या भागे हुए कश्मीरी ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री वहां बसा पाए? मेरे सवाल का सीधा सा जवाब कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बसा पाए क्या? रही बात हमारे लेफ्टिनेंट साहब की जो कह रहे हैं लद्दाख में कि जमीन जो है चीन ने नहीं लिया है, तो उससे बड़ा झूठ क्या होगा? जिस देश का बॉस ही झूठ बोल रहा हो, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो, पूरी दुनिया ने देखा, सैटेलाइट से दिखाया जा रहा है, फोटो दिखाए जा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है वहां जितना सारा कब्जा जो है चाइना ने किया है, ये सारी चीजें किस तरह से हो रही है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी जी जब लद्दाख गए थे, वी आर शोइंग द ब्रसल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट नाउ, कैन वी आल्सो शो राहुल गांधी राइडिंग अ मोटरबाइक इन लद्दाख प्लीज? आई थिंक वी हैव दैट फुटेज, कैन वी प्लीज शो इट? वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ के जो गडरिये हैं, फॉर एग्जांपल जो भेड़ बकरियां जो चराते हैं और याक वगैरह जो रखते हैं, उन्होंने आकर के राहुल गांधी जी को बताया कि पहले जहाँ पर हम जा सकते थे आजकल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे चाइनीज फौज है। ऐसा राहुल गांधी जी को सबने पब्लिकली बोला है और पब्लिक में बोला है, वो रिकॉर्ड भी हुआ है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि असल में क्या है वो, व्हाट इज द रियलिटी? क्योंकि अगर मान लीजिए लद्दाख में, प्रदीप जी बहुत सुनने वाली बात है, अगर मान लीजिए लद्दाख में जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, आई एम श्योर निजामुद्दीन रहीम साहब भी उम्मीद करते होंगे ऐसा ही हो, कि चीन ने 1 इंच भी टेरिटरी हमारी नहीं ली है, तो फिर हमारे आर्मी कमांडर्स आपस में मिल क्यों रहे हैं? हम ये क्यों बोल रहे हैं कि प्री अप्रैल 2021 की जो पोजीशन है वहां पर हम सबको विड्रॉ करना चाहिए? ये बातचीत क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना क्योंकि चीन अंदर आ गया है। निजाम साहब, चीन अंदर आ गया है, ये बात सिर्फ आज नहीं, संसद के बहस में भी आया और G20 में ये बहस हो सकती थी, इसलिए चीन के लोग शामिल भी नहीं हुए। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ सारे रिश्ते खत्म करेंगे और चाइना के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। आज भी चाइना के साथ सारे कारोबार हो रहे हैं। आपके सामने धार्मिक मूर्तियां सब चाइना से बन के आ रहे हैं। आज आप चाइना का कपड़ा आ रहा है, चाइना की सारी चीजें आ रही है, चाइना के कारोबार में इनके मंत्री और इनके लोग उसमें शामिल हैं। खुद डोभाल साहब के जो इनके NIA के हेड हैं उनके लोग उसमें शामिल हैं। तो ये बातें प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और उसी प्रधानमंत्री की झूठ को सच साबित करने के लिए ये बातें हो रही हैं। आपको 2 चीजें याद होगा कि झूठ बोलने की पूरी मशीनरी इनके पास है। आपने देखा कि संसद में खड़े होकर बड़ी ताकत के साथ जो है अमित शाह ने कहा कि कलावती को जो है सारा सुविधा साधन, सारा उसको घर, पैसा, सारी वस्तुएं बीजेपी और हमारी सरकार ने दिया। दूसरे दिन कलावती चैनल पर आती है, आकर कहती है कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा, हमें जो कुछ भी दिया वो राहुल गांधी ने दिया।
उससे पहले जब ये भारतीय हमारी यात्रा शुरू हुई थी तो इसी स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और वो वहां जो है विवेकानंद जी के उस पर नहीं गए थे। सवेरे उसकी फोटोज आ गई। तो ये झूठ के मशीन है ये सभी, इनकी किसी बात को देश सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एक जो चीज है है निजाम साहब, एक चीज तो है, एक चीज तो माननी पड़ेगी, और वो ये जो आप कह रहे हैं उसमें एक चीज तो दम है। उसमें क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो भाषण देते हैं, कुछ देते हैं, उनका पूरा ध्यान आकर्षित आप पर होता है, मतलब कांग्रेस पर होता है। अगर भाई आप जो हैं इतने कमजोर हैं, इतने मजाक के पात्र हैं, हंसी के पात्र हैं, तो आपके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? नहीं, वो उनको ऐसा लगता है, उनको चाहते हैं कि वो और कुछ करें। अगर वो इस तरह से, आपने देखा कि जो छवि बनाने के लिए, राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए 10-20 रुपया नहीं, कई हजार करोड़ रुपए बर्बाद करने के बावजूद क्या राहुल गांधी की छवि बिगड़ गई? क्या जो छवि वो बनाना चाह रहे थे देश में कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, क्या वो राहुल गांधी से किसी डिबेट में बैठ सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री? क्या वो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कभी लेक्चर पर गए हैं? क्या कभी वो कभी ढंग की अंग्रेजी बोली है, देश को बताया है? तो इस तरह की चीजें अगर जो है मोदी जी करते हैं और देश को धोखा देने की बात कर रहे हैं या किसी की इमेज खराब करने की बात कर रहे हैं, तो पैसा लेके कोई भी मशीनरी करने को तैयार रहती है। जिन मशीनरीज को इन्होंने हायर करके राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने सिर्फ एक पद यात्रा से, सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा से इनके हजारों करोड़ को जमीन में रौंद दिया और राहुल गांधी की छवि एक हीरो, सुपर हीरो की बना के रख दिया। और दूसरी यात्रा जिस दिन शुरू होगी, ये अपनी बिलों से भी नहीं बाहर आएंगे और इनके दरवाजे बंद रहेंगे। तो दूसरी यात्रा कब शुरू हो रही है सर? चलते चलते वो भी बता दें। बहुत ही जल्द, अगले महीने में आपको निमंत्रण मिलेगा। गुजरात से हम यात्रा शुरू करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तरीके से खुल के बात करने के लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू भैया। Our very dear friend Mr. Nizamuddin Rahim, और Nizamuddin Rahim साहब, I mean, whenever he talks about Rahul Gandhi, he becomes really supercharged. Passionate. He becomes I mean, very passionate. these are the young brigade that are totally committed to Rahul Gandhi. That's right. And, Totally. And they seem to be very troubled by the way the BJP has been attacking him. So I think that this is exactly what the Congress needs, really speaking. So I think they're doing a good job, all these chaps, which is not bad at They all. are energetic, they are very informative. Yes. You know, they have a deep study on whatever they do. Like we had Balaji Gadi Patil, another spokesperson. We had Hanumant Pawar and Dhananjay They're so Janakar. well versed with the subject, and Yes. they have been moving on the ground Right. with farmers' issues, various other issues. So when you talk to them, actually, you know, the whole nation is gathering information. Because जो उन्होंने हाईलाइट कर दिया था हमसे कि ये जो ₹1 क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप Yes. इंश्योरेंस, मैं पूरे हनुमंत पवार Yeah, साहब बिल्कुल। कहे कि वो पूरे पूना में घूम करके आए, पुणे में, Yes, yes. और उनको वो इंश्योरेंस ऑफिस नहीं मिला, जिस इंश्योरेंस कंपनी का नाम था, मतलब और एक ऑफिस मिला, 3 दिन बाहर घूम के अंदर बाहर अंदर 3 दिन ये सब चक्कर काटने के बाद दे से दैट ये यहाँ का नहीं है जी। सो देयर हैज टू बी लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड द इश्यूज दैट ही रेज्ड, हाउ विल अ पुअर फार्मर हु इज बीन अफेक्टेड बाय दिस famine, heavy rains or no rains or drought, how is he going to have the net जी। वो कैसे नेट उनके पास रहेगा कि इस चीज को वो कनेक्ट करके ऑनलाइन कंप्लेन करे, पंचनामा हो? इट्स अ बिग चैलेंज। आई मीन द गवर्नमेंट विल हैव टू रियली देखिए साहब, जहाँ तक इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है, बाकी सब चीज़ों का सवाल है, अगर क्रॉप इंश्योरेंस प्रदीप जी इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही होती तो आज की तारीख में मराठवाड़ा में, विदर्भ में इतने ज़्यादा किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। सीधी सादी बात है। यस यस। तो मतलब ये कहना कि भाई हम लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हनुमंत पवार साहब हम लोगों को बता रहे थे, वो उन्होंने 3 दिन लगा दिए, 2.5 दिन लगा दिए इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर ढूंढने में, पीक इंश्योरेंस के लिए, और वो इंश्योरेंस का दफ्तर है कहाँ किसी को मालूम नहीं है, आज तक इंश्योरेंस नहीं मिली है उनको। मतलब दिस इज लाइक टेरेबल। नाउ एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द all right, we had him, I think we had Mr. Matole with us, and now suddenly he's been disconnected again.
I don't really know why. Mr. Amol Matole was with us and he has been disconnected. So I hope he'll be connected again from the NCP, Nationalist Congress Party. I hope we are able to get him back on again. But the other major issue, Pradeep ji, is the matter of Maratha reservation. जहाँ तक Maratha reservation का सवाल है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? हर जगह पे जो अलग अलग तबके हैं मराठा कास्ट के, जिसमें 96 तबके, 96 कास्ट हैं, जिसमें बिल्कुल कास्ट है, हर एक की अपनी अपनी राय है। यस यस। और हर एक को ये बोल रहा है कि सिर्फ कुनबी जो हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा क्यों मिले, बाकी सबका क्या? नंबर एक। और नंबर दो, जो कुनबी पहले से ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये नए कुनबी कौन है जो आ गए ना। दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। ये Sir, बहुत various आसान नहीं sections होगा। of the Maratha communities working with different agenda. They all want one common issue is that हमको reservation चाहिए। जी, हमको, but we don't want from the OBC already existing quota. यस, Now, the government has probably failed to give them a proper, clear understanding that this can happen only there यस, in the center. Now, within the Maratha community also, कुछ लोगों का कहना है कि we are not Kunbis. Are you going to give Kunbi certificates to Marathas? We are Marathas. So ये जितने लोग हैं, कोई जल समाधि कर रहा है, कोई रोड पे आंदोलन कर रहा है, कोई today in fact Mr. Anil Deshmukh also was in यस, protest. कोई यज्ञ करवा रहे थे वो Yes, देख रहे yes, थे हम yes, लोग। yes, yes. मतलब तो जहाँ तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, ये मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है प्रदीप जी। मतलब ये आसान नहीं है ये। मतलब आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस गवर्नमेंट माइट फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एंटायर सिचुएशन। No, मुझे ऐसा लग रहा है। even now they can't even control Jarange Patil. I mean, जलना जो आंदोलन चल रहा है, मराठा आंदोलन, they जी। couldn't control him. I mean, he is not listening to anything. वो बोले कि नहीं, आप मुझे बोलो कब दे रहे हो। हाँ, बाकी सब चीज़ें छोड़िए, क्योंकि क्या है, सील्ड एनवेलप वो सेंड टू हिम एंड ऑल दैट और उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये सील्ड एनवेलप वगैरह नहीं चलेगा, सबके सामने आकर के अनाउंस कीजिए। तो देखिए ना प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, कुनबी हो गए, दांगड़ हो गए, लोहार हो गए, सुतार हो गए, भंडारी, ठाकर, ये सब लोग जो हैं, सभी लोग मराठा में आते हैं। तो बाकी सबका कहना हमारा क्या? सिर्फ कुनबी को आप दे रहे हैं, बाकी सबका क्या? और कुनबी में भी आप नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे आप? क्योंकि यू हैव टू हैव प्रॉपर प्रूफ ऑफ द लास्ट 3 जनरेशंस। Yes. 3 जनरेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम कुनबी हैं। बिल्कुल। आज हम मराठा हैं, मराठा कैटेगरी में आते हैं, लेकिन असल में हम कुनबी हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड। इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग दे देंगे, और अभी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया है कि भाई ये वी हैव टू कंसिडर दिस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि इट हैज टू बी लीगली वेरी साउंड, ऐसा करके कहा गया है। डू वी हैव मिस्टर मटोले विद अस, और आर वी स्टिल ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम? Sir, I mean, this is going to be a big challenge. जो महाराष्ट्र है, you know, जी, how are they going to do it? Dev Fadnavis, Ajit Pawar, elections approaching, one nation, one election. What's going to happen in Maharashtra? Because after Uttar Pradesh, BJP is eyeing Maharashtra. So बार यहाँ पर मीटिंग लेके एक टारगेट सेट कर दिया, जैसे आपने कहा 45 seats out of 48. They want 45 seats out of 48. And now I think the focus of the BJP is totally in winning the Lok Sabha elections. So we don't know how it's going to happen. The equations will turn out in Maharashtra. We were always talking ki will Sharad Pawar 17%, Uddhav Thackeray 16%. Earlier, undivided votes. Yes. Which way? And 16% of Congress. Congress remains intact. Congress remains intact. It is Sharad Congress Pawar. is the only party which has not broken, in Yes. spite of great efforts from a lot of people. If you remember, बहुत बड़ी बातचीत चल रही थी कि अशोक चौहान साहब शायद इधर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, ये कहा जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वहीं के वहीं है। मतलब No, we are trying to understand what has Mr. Ajit Pawar gained by coming over the side. apart from the fact that the cases against him have gone into a slowdown, or they have gone into hibernation, perhaps. I think that must have been the main consideration, because the cases against him are very very serious. So that must have been the deal, that as long as you are here, you know, the cases will remain, but the investigation will be slow. So he gets a lease of life, so to speak, or postponement of execution.
That's what it means. So is the case with Mr. Chhagan Bhujbal, so is the case with Mr. Sunil Tatkare. But I don't know about Mr. Dilip Valse Patil. Why is Mr. Dilip Valse Patil there? Why is he there? I mean, very strange, very, very strange as far as I'm concerned, because I don't really know what's up with the NCP. And I think Mr. Matole is now completely and totally out of reach. We are trying to get Mr. Mehmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party. Let's see if he is available. But in the meantime, as far as the Maratha reservation is concerned, that's a very, very complicated issue. And I hope, I really and truly hope that, nothing goes wrong, Pradeep ji, because अगर मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन है, आज भी जो आंदोलन हुआ बहुत शांतिपूर्वक हुआ। देखिए प्रदीप जी, मराठा समुदाय ने ये प्रूव करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया कि वो बहुत डिसिप्लिन है और कभी भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं करते। माफ कीजिएगा, मैं बार बार अपने कान पे हाथ लगा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट माय ईयरपीस टू फॉल ऑफ, इट हैज बीन फॉलिंग ऑफ। तो मेरा ये कहना है कि जहां तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, मराठा आरक्षणकारियों मतलब मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों पर जालना में लाठीचार्ज करवा के आज की सरकार ने शायद अपने पैर में गोली मार ली, मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी। सर, मराठा आंदोलन एक इशू है ही, एंड द इशू नाउ इफ समथिंग वी होप दैट जलना आंदोलन और द गवर्नमेंट सक्सेसफुली कन्विंसेस मिस्टर पाटिल, so these things get under control. Because But does Mr. Patil have control over his supporters? I'm not sure. यही प्रॉब्लम है सर, कोई आंदोलन जब छिड़ जाता है, I mean, some आंदोलन अपने आप हो जाता है, it takes a life of its own. Yes, it requires a life of its own. That's right. और कभी-कभी उस लीडर का भी मानते नहीं है कि जिस लीडर ने इस चीज को आगे बढ़ाया। So we hope that thing. In fact, today Mr. Bhide, Sambhaji Bhide जी भी गए थे to meet Mr. Patil, but Mr. Patil is absolutely. He is adamant. He says all or nothing. All or nothing. Yeah, and he is right, by the way. He is absolutely right because he was promised. आप देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि मेरी सरकार ने आरक्षण दिया, और उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है वो अच्छी तरीके से आरक्षण का केस अच्छी तरीके से उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो भाई आप भी तो एक साल के लिए यहाँ पर हैं, आप कर लीजिए, एक और रिवीजन पिटीशन फाइल कर लीजिए, आप कर लीजिए, किसने रोका है? सीधी बात है ना प्रदीप जी। जो there's going to be a divide among the entire social fabric. Right, there is. So it's going to be very difficult to control from here. Now आपने कहा कि yes, and they all agree that they are very much backward and poor people in the Maratha community. Yes, there are. And they really need help of reservations so that they can uplift them. And I think we shall have to continue our reservation conversation as we go along. At the moment with us from the Aam Aadmi Party, after a very long time, our old friend Mr. Mehmood Deshmukh. Mehmood Deshmukh साहब नमस्कार। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार जी महमूद देशमुख जी। सर आवाज आपकी ठीक तरह आ नहीं रही है महमूद देशमुख साहब। आई एम गेटिंग अ क्रैकलिंग इन द वॉइस। अभी आई आवाज? अभी आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। हेलो अभी जी बिल्कुल ऐसे ही बोलिए, जरा जोर से बोलिएगा। महमूद देशमुख साहब, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आज की तारीख में आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। महमूद देशमुख साहब, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। हाँ खुश है सर, हमेशा खुश इसलिए होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो हर एक पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब तो भले वो कांग्रेस है या कोई और पार्टी हो या इनफैक्ट बीजेपी भी हो, आप ही के एजेंडे पे बात कर रही हैं कि गैस सिलेंडर 450 का 200 यूनिट फ्री वगैरह वगैरह। बोलिए सर महमूद जी। सभी को इस एजेंडे पे आना होगा सर जी। बोलिए। खुशी की बात है कि 75 साल बाद सभी पार्टियां जाग तो रही है, और सिर्फ आपकी वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। दुरुस्त बात है। जो अरविंद इसका पूरा क्रेडिट जो है सर कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। जी दुरुस्त बात है। महमूद देशमुख साहब, एक चीज तो है, जो केजरीवाल मॉडल है अब सबको मालूम पड़ गया कि देश इसी से चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं चलेगा।
तो आप तो लोगों जी। के बीच में घूम रहे हैं, आप तो लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं हमेशा, लोग आपके साथ बातचीत जी। करते हैं, तो लोगों की क्या राय है इसके बारे में? सर आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फ्रेम को एडजस्ट मत कीजिए, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बोलिए। ओके सर। लोग क्या बोलते हैं सर वो बताएं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में। जिन लोगों के साथ आप संपर्क में हैं, आप स्लम में भी जाते हैं, बाकी सब लोगों के साथ भी संपर्क में हैं, नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं, तो लोगों की क्या राय है अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में, वो जरा दर्शकों को बताएं। महमूद जी। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से पूरे देश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात है तो कहीं भारत पाकिस्तान की बात होती है, तो कभी मतलब हिंदू और दलित लड़ाई होती है ना, कभी प्रांतवाद की लड़ाई तो कहीं रिजर्वेशन की लड़ाई। तो लोगों को सिर्फ उलझा के रखा गया है इन विषयों में, बल्कि जो मतलब होना चाहिए हकीकत में लोगों के विकास की बातें, बेरोजगारी के मुद्दे पे, है ना, किसानों जी। के मुद्दे पे, जी। महंगाई के मुद्दे पे, इन पे कोई मतलब बात नहीं करता, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। सब शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं राजनीति का। सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो विकास की राजनीति की बात करते हैं, अस्पताल और स्कूल की बात करते हैं, सड़क और बिजली और पानी की बात करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं। अगर वाकई में इस देश को तरक्की पे लाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, तो हमको ये जो बेसिक जरूरतें हैं इंसानों की, आम आदमी की, उस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों का मुद्दा होगा, नौजवानों का मतलब रोजगार का मुद्दा होगा, या फिर शिक्षा का मसला हो, जी। अस्पताल का मसला हो, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो महमूद देशमुख जी, बहुत कुछ महीने पहले आपने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया था, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हाइक है, मीटर डिस्कनेक्शन है, उसके लिए पूरे मुंबई के लिए आपने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था। मुंबई आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त फील्ड पे जाकर मोर्चा लेकर, कभी आप प्रकाशगढ़ में गए थे, कहीं अलग अलग जगह पे। तो आज वो स्थिति क्या है? क्या आपने कैंपेन छोड़ दिया या उस कैंपेन को आगे लेके जा रहे हो आप? किस प्रकार, किस मोड़ पर है वो? देखिए, कैंपेन हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन अब ये जो सरकार बैठी है, ये निकम्मी सरकार है ना, ये मस्त सरकार, इनको पड़ी नहीं है। ये देखिए, यहाँ सही माने में आज लोकतंत्र कहीं नहीं है। ये हर जगह पे आंदोलन को कुचलने की बात करते हैं। और आपने देखा होगा अभी जो मतलब सराठी में जो किस्सा हुआ है ना, ये आरक्षण के मुद्दे पे, जो मराठा आरक्षण के मुद्दे पे, वो जरांगे पाटिल पे, और वहां पे महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज किया गया। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे सार्वजनिक जीवन में पहली बार मैंने देखा होगा, जब जब मैंने आंदोलन की बात की होगी, तब तक पुलिस स्टेशन ने यही कहा होगा कि भाई 144 लागू है, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में भी मैंने मतलब एसआरए पे मोर्चा निकाला था, बीच उसके बाद में हमने भाड़ा पे मोर्चा लिया। तो उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा बीच में आके ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और 144 लागू है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये पहली बार ऐसे हालात मुंबई में, महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ शायद पूरे देश में, कि 144 कंटिन्यू लगा हुआ है। जबकि 144 लगाने के ऐसे हालात क्यों है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सरकार इसकी सफाई दे, होम डिपार्टमेंट इसकी सफाई दे। ये मैं आपके चैनल से ये सवाल कर रहा हूँ। तो ये आज बड़े ताज्जुब की बात है महमूद देशमुख साहब, बड़े ताज्जुब की बात है कि आज तक हमने देखा कि भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक संगठन जितने भी हैं, उनका तो हक है आंदोलन करना, बाहर आना, जलसा करना। यस, आर्टिकल 19 ये आपको इजाजत देता है कि आप मतलब अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण मोर्चा निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये वो सरकार है जो संविधान को मानती ही नहीं है, दिखावा भले करती है लेकिन ये संविधान को मानती नहीं है। ये हमारी अंदर समझ है। But this is sad, isn't it, Pradeep? This is Yes, बिल्कुल बिल्कुल। महमूद देशमुख जी, ये आंदोलन आपने ये भी छेड़ा है कि आपने हर वार्ड में जाके जो पोर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, जो पब्लिक टॉयलेट्स है मुंबई के इतने बैड अवस्था में है, जो पैसेजेस है वो बैड अवस्था में है, लोग स्लम्स में बहुत
बैड जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस जो पायवाटा बना रहे सालों से उसमें फंड्स खर्चा कर रहे हैं, बट वो गंदगी वैसे है, तो गार्बेज जिस प्रकार से, तो ये कैसे इस चीज को आप कैसे बदलना चाहोगे? बिकॉज हमने भी आपके साथ कैंपेन्स किए बहुत सारे क्षेत्र में, तो एक बहुत बुरी अवस्था है, इस बुरी अवस्था को कैसे निकाल पाए, कैसे आप सोच रहे हो इस चीज को सुधारेंगे? देखिए अभी ऐसा है, मुंबई महानगर पालिका बर्खास्त होकर 2 साल हो गए, अभी तक कारपोरेशन के चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। सत्ता में जो है मतलब कमिश्नर के हाथ में सत्ता है, एज एडमिनिस्ट्रेटर बना के उनको मतलब उनके हाथ में सत्ता दी गई। अब ये जवाबदेही किसके है? एक मतलब इनको सवाल पूछने वाला कोई बैठा नहीं है, सब मनमानी चल रहा है, कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा। तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए और नगर सेवक चुन के आएंगे, तब जाके मतलब एक अंकुश होगा इस पे और काम होंगे लोगों के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं और अन्य पार्टी वाले भी बोल रहे हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हुए, बाकी सब लोग हुए, जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो जो आप बता रहे हैं कि अभी तो सेक्शन 144 परमानेंटली लगा हुआ है मुंबई में, पता नहीं कितने साल से। यस, तो जी आप पता लगाइए, ये सही है। ये तो अजीबोगरीब मसला है, मतलब कोई आंदोलन नहीं कर सकता, जलसा नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सही बात है। ये क्या हुआ? मतलब आज की तारीख में फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 1.5 साल हो गया, एक्चुअली 1.5 साल हुआ है कि बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, ठीक है साहब? नहीं होगा। और अगर आज आम आदमी पार्टी जलसा करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ? नहीं मिलेगी सर, ये बिल्कुल सही। तो डेमोक्रेसी कहां रही भाई? लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र नहीं का रहा सर, पहला इसलिए हक तो होता है कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं और संगठन के साथ, मतलब लोगों को संगठित कर सकूं मेरी बात रखने के लिए प्रशासन के सामने। ये क्या मतलब हुआ? ये तो अभी पार्टी में क्या चल रहा है, आपके पार्टी के नेतृत्व में क्या चल रहा है कि इसका मुकाबला कैसे हो? महमूद देशमुख नहीं, साहब, हम तो देखिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इसका जो मुकाबला है वो संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के दायरे में रह के ही करेंगे। भले ही मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरह से पेश आए, लेकिन हम तो मतलब संविधान के दायरे में और लोकतंत्र के दायरे में रह के इसका मुकाबला करेंगे। महमूद देशमुख जी, ये बार बार यही चल रहा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वेयर पानी वाला मसला था, बीएमसी स्कूल्स का मसला था। बीएमसी स्कूल्स का आप ही का आंकड़ा है कि 2.2 लाख चिल्ड्रन, 2.2 लाख चिल्ड्रन पूरे हमारे बीएमसी स्कूल्स में है, और जो दिल्ली मॉडल में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स में 16 लाख बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और ये केजरीवाल मॉडल बन गया था। केजरीवाल मॉडल आप मुंबई में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो ये आप बिकॉज मुंबई में स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुंबई में हर वार्ड में बीएमसी के स्कूल्स है, एवरी वार्ड। यस। और मैं देख रहा हूं बीएमसी के जो स्कूल्स है, म्युनिसिपल स्कूल्स के बाहर आजकल एस्ट्रोटर्फ लगा है, एस्ट्रोटर्फ, जो गरीब बच्चों को ये हॉकी हो, फुटबॉल हो, उस चीज के लिए, यानी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको कैसे, बिकॉज 2-3 जगह पे हमने भी देखा कि एस्ट्रोटर्फ बन रहा है, मगर बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, वो पर आवर कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, पैसे लेके कमर्शियल बना दिया है। यस। ये गरीब बच्चों लोग, बीएमसी के गरीब बच्चों की जो फैसिलिटीज बना दी है, ये इसको कमर्शियल बना दिया है। तो ये सब सुधार कैसे करोगे? बीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर वार्ड में है। अगर 226 वार्ड बोल रहे हो तो आपके पास 226 के आसपास स्कूल्स है यहाँ पर, तो इस चीज को कैसे सुधारोगे देशमुख जी? देखिए सर, इसका रास्ता एक यही है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव होगा। तो मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आ जाएगी बहुमत में, क्योंकि लोग सब त्रस्त हैं इनकी मतलब हरकतों से। अभी आपने देखा होगा जिनके ऊपर चार्जेस लगे है ना मुंबई महानगर पालिका में, जिन लोगों पे मतलब बीजेपी ने मतलब चार्जेस लगाए कि ये मतलब
स्कैम में कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं, उन्हीं को इन्होंने अपने गले लगा दिया, अपने साथ मिला लिया। आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये मतलब सत्ता में आने के बाद में अच्छा काम करेंगे? तो आज यहाँ मुंबई शहर की आम जनता जो है ये समझ चुकी है कि भाई सिर्फ अगर कोई अगर अच्छा काम कर सकता है तो, और हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमको कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि हम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि दिल्ली में जैसे हमने काम किया है वो दिल्ली पैटर्न हम मुंबई में भी लाएंगे। आप पंजाब में कर रहे हैं, बहुत पंजाब में मैंने कर रहे हैं। कैंपेन चलाया था कि 1000 पंजाब करोड़। में मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ सर, जी। एमसीडी की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एमसीडी में काम शुरू हो गया, एमसीडी में काम शुरू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का तो काम शुरू हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये एमसीडी में भी हमने अच्छा काम चालू कर दिया है। जी जी, और दिख रहा है, काफी दिख रहा लोग है, खुश। दिख रहा है जी, जी, वो तो दिख रहा है। जी प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे, देशमुख बोलिए। जी, एक हमने वहां पे दिल्ली में एक एग्जांपल सेट किया, तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे मतलब दिखाना चाहते हैं लोगों को। जी देशमुख जी, बहुत महीने पहले आपने पीएपी स्कैम 1000 करोड़ पीएपी स्कैम, आपका कहना था गोस्ट स्ट्रक्चर्स जिस प्रकार से घोटाला चल रहा है, चाहे वो एसआरए, पीएपी स्कैम्स, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, ये 1000 करोड़। यस, प्रीति शर्मा मेनन, आप सब इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर दिया है। उसका क्या स्टेटस है आज के तारीख में? सरकार सही रास्ते पर लेके आए पूरे डिपार्टमेंट को? क्या चल रहा है अभी? नहीं कुछ नहीं है, अब जैसे है वैसे है। मैंने कहा ना कि सरकार में जवाबदेही किसी के पास नहीं है, कोई जवाब देना नहीं चाहता, ये मनमानी सरकार है। पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है ये असंवैधानिक सरकार है। आप देखेंगे अब ये 14 तारीख से मतलब इनका मतलब ट्रायल चालू हो जाएगा, है ना, कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन पात्र होगा और कौन अपात्र होगा, ये तो अब चलने वाला है। तो पिछले 1 साल 1.5 साल से तो इनके सर पर वैसे ही टांग तलवार लटक रही है। ये सरकार से ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पड़ोस में ही भारत नगर है ना, भारत नगर के अंदर जो माड़ा लेआउट है, भारत नगर में मतलब माड़ा टेनामेंट से मुंबई शहर के अंदर मतलब माड़ा का खुद का गवर्नमेंट का एक गैजेट है जिसमें ये बोला गया है कि मतलब माड़ा के जितने भी लेआउट्स हैं उसके ऊपर 33(5) है ना, सेक्शन 33(5) के तहत डेवलपमेंट होगा, मतलब रीडेवलपमेंट के हिसाब से उनको घर मिलेंगे। आज वहां पे मतलब भूतपूर्व अदानी नाम के बिल्डर के जरिए वहां पे 3310 मतलब एसआरए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मैंने उस बात पे सतीश लोखंडे जी से मुलाकात की, जो एसआरए के सीईओ है, वो कहते हैं कि भाई आप माड़ा से बात करिए, माड़ा लैंड ऑनर है, माड़ा अगर मना कर देगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जब माड़ा सीईओ से मिलिंद बोरीकर से मैंने बात की तो माड़ा सीईओ कहते हैं कि भाई 3310 कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और 33(5) अगर ऐसा है तो आप कोर्ट जाइए। अरे भाई कोर्ट जाइए तो फिर आप क्यों बैठे हैं, है ना, मतलब एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके यहाँ पे इस गवर्नमेंट के अंडर में हर अधिकारी मतलब भ्रष्ट काम कर रहा है। तो माड़ा का सीईओ अभी संजीव जायसवाल जिनको माड़ा का वीपी बनाया गया है, उनकी खुद इंक्वायरी चालू है। आप मुझे बताइए, जिस अधिकारी की, जिस एक ऑफिसर्स की ईडी के तहत इंक्वायरी चालू है, उसको आपने माड़ा का वीपी बना के रखा है, तो क्या उम्मीद की जा सकती कि वो यहाँ बैठने के बाद में ईमानदारी से लोगों का काम करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए। बेशक होना चाहिए। चुनाव होंगे क्या उम्मीद है आपको? क्या कोई जानकारी मिल रही है, क्या कोई इंडिकेशन आ रही है कि शायद हो सकता है चुनाव में? संकेत आ रहा है क्या? ये सरकार का बस चले, सुनिए मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, अगर इनका बस चले तो ये अपने लाइफ में कभी इस देश के अंदर चुनाव कराया ही नहीं, चुनाव ही कराएंगे जी। हाँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा बीएमसी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है सर। दुरुस्त बात है, लेकिन आज तक कभी ऐसा बीएमसी में नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही बार हुआ था 1984 में, डीएम शुक्तंकर साहब बीएमसी के कमिश्नर हुआ करते थे, और वो भी 6 महीने के लिए 1984 में। जी नहीं सर, 1985 से लेके 1990 में टर्म्स खत्म हो रहा था, उस समय भी 2 साल बढ़ के हुआ था। 92 में चुनाव हुआ था कारपोरेशन का, लेकिन हाउस था उस वक्त के हालात, लेकिन सर हाउस था, बिल्कुल, लेकिन हाउस फंक्शनल था, हाउस था ना, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ इलेक्शन एब्सेंट हुए थे।
करेक्ट है, लेकिन अभी तो हाउस ही नहीं है। यस, हाउस ही नहीं है, बिल्कुल अभी सही। कोई जाए तो किसके पास जाए? तो हमारा कहना यही है ना, अब हम जाए तो जाए कहाँ? जी, केजरीवाल जनता जी किसके यही बोल किसके रहा था पास कि जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी हर नॉन बीजेपी स्टेट, नॉन बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिल, हर चीज जो बीजेपी के हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल से बीजेपी के हाथ में लेना चाहता है। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज व्हाट एवरीवेयर मोदी जी कर रहे हैं डेमोक्रेटिकली। जैसे दिल्ली में आपके पूरे हक उन्होंने अपने पास रख लिया, दिल्ली जो बिल पास करने के बाद। तो क्या ये सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है? उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स टोटलिटेरियन, और 2024 में हम लोग एक साथ लड़ेंगे नहीं आके, तो ये पूरा टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल टोटल टेंडेंसीज आ जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो पूरे बीजेपी के रूल होगा, और या तो एलजी करेगा या गवर्नर करेगा या मोदी जी रूल करेंगे। कैसे देखते हो इस स्टेटमेंट को देशमुख साहब? उद्धव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अभी जो एक इंडिया है ना, इंडिया लेवल पे जो एक इंडिया का अलायंस बना हुआ है ना, जिसमें आम आदमी पार्टी भी एक उसके अंदर मतलब एक जिम्मेदार रोल अदा करेगी, है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए ये लड़ाई रहेगी, और इंडिया इसमें कामयाब होगी। इंडिया कामयाब होगी, एनडीए बाहर होगा। तो कहने का मतलब और ये ये हुआ जरूर ये वक्त की जरूरत है कि एक बार लोकसभा में आप लोग जब जीत जाएंगे, उसके बाद ही मुंबई शहर के बीएमसी में चुनाव होंगे, उसके पहले नहीं होते दिखते मुझे, लगे जरा। लग तो ऐसे ही रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है सर। तो बीजेपी का कहना है कि देखो 2024 में इंडी अलायंस के पास कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो, कन्वीनर डिक्लेयर करो। इंडी अलायंस कन्वीनर और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा? बीजेपी का आलोचना है महबूब देशमुख जी। यस सर, देखिए सर, ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, है ना। ये पहले का दौर था, राजा अपने अपना वारिस डिक्लेयर करता था, राजा अपने बेटे को राजा डिक्लेयर करता था, है ना, कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा है राजा बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, एनडीए में हो सकता है कि वो अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और अलग अलग पार्टियां सब साथ में मिलके तो जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेंगे, जो इंडिया की जो एक टीम बनी है, कोऑर्डिनेशन टीम है, वो लोग डिसाइड करेंगे। जब इलेक्शन के बाद में जिसके ज्यादा एमपीज आएंगे उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र क्यों है कि आपने अपना प्राइम मिनिस्टेरियल उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है? तो बीजेपी को इतनी फिक्र क्यों है आपकी? अरे सर, अगर आप बीजेपी के लोगों को अगर आप पर्सनली पूछेंगे ना, ऑन रिकॉर्ड में ऑफ रिकॉर्ड अगर पूछेंगे, तो कई लोग उनके भी लाइन में खड़े हैं कि भाई अभी हमारा नंबर लगना चाहिए। आप समझे? तो वो अपने घर में झांक कर देखे, अपने पहले गिरेबान में झांक ले, कई लोग उनके लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस के अंदर तो सीधी सी बात है कि जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी, जिसके ज्यादा एमपीज होंगे, उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसके लिए सब एग्री है, किसी में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जी, मराठा आंदोलन एकदम उग्र हो गया महाराष्ट्र में महबूब देशमुख जी। मराठा आंदोलन एकदम उग्र, एक तेजी पकड़ लिया है। अलग अलग मराठा ग्रुप अलग अलग डिमांड्स लेके लोगों के सामने आए, प्रदर्शन कर रहा है। कोई जल समाधि कर रहा है, कोई जैसे जलना में समाधि, जलना में जिस प्रकार से बैठे। तो क्या होने वाला ये ओबीसी रिजर्वेशंस, उसके बाद ओबीसी बोले कि हम आंदोलन पे निकले कि हमारा कोटा से नहीं निकलना चाहिए, हमारा कोटा। तो आप कैसे देखते हो, क्या पूरे महाराष्ट्र एक वेरी एग्रेसिव मोड पे पहुंचा है कि यहाँ पर लोग नियंत्रण में रहना, रिजर्वेशन के इशू पे नियंत्रण, कंट्रोल में नहीं रहेगा? हाउ डू यू सी इट महबूब देशमुख जी? देखिए सर, आरक्षण का मुद्दा जितना आप समझते हैं, है ना, वो उतना आसान नहीं है। जितना आप अभी जो दिखाई दे रहा है उतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आती है मुझे। तो मैं तो ये समझता हूं, 2014 से जो सरकार बैठी है, केंद्र सरकार,
ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है इस देश पे। वो आरक्षण एससी कम्युनिटी का हो या ओबीसी कम्युनिटी का हो, वो किसी भी कम्युनिटी को आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए ये आपस में लड़वा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले हरियाणा में आरक्षण के ऊपर गुर्जर समाज लड़िया रास्ते पे उतर गया था, जाट समाज रास्ते पे उतर गया था, राजस्थान में गुर्जर समाज रास्ते पे उतर गया था, है ना। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज रास्ते पे उतर आ रहा है, तो कहीं ओबीसी भी अपोज करता है। देखिए एक मतलब ये अगर वाकई में इसके लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अगर वाकई में इनको अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण देना है तो इनको घटना में दुरुस्ती करनी पड़ेगी, अपने संविधान में मतलब अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि संविधान कहता है, घटना हमारी कहती है कि 50% के ऊपर हम लोग आरक्षण दे नहीं सकते हैं। यह सब पार्टी ऑल पार्टी जान रही है ना। तो फिर ये अमेंडमेंट कहाँ होगा, ये मतलब संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना होगा और ये पार्लियामेंट के माध्यम से होगा। ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना। और ये आज ऐसे हालात है कि महाराष्ट्र में जिनकी सत्ता है वही केंद्र में भी बैठे हुए हैं और मेजोरिटी में बैठे हैं। अगर ये मोदी सरकार चाहे और यहाँ महाराष्ट्र में बैठी हुई शिंदे सरकार है ना, ये दोनों भी एक ही सरकार है, तो अगर हकीकत में ये अगर इनको ये ईमानदारी से अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण देने की अगर इनकी नीयत है तो मैं समझता हूँ समय नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी 18 तारीख से जो मतलब ज्वाइंट अधिवेशन बुला रहे हैं ना ये पार्लियामेंट सेशन, तो उसके अंदर ये बिल पास कर ले, अमेंडमेंट लाए इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 50% के ऊपर भी आरक्षण हम दे सकते हैं बोल के, ये वक्त की जरूरत है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये मराठा समाज के बारे में, महाराष्ट्र के अंदर 35% मराठा समाज है ना। एक आप बजाज साहब जी देखिए, आज हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, है ना। तो आज लड़ाइयां जो लड़ी जाती है वो कोई लड़ाइयां खत्म हो गई। एक दौर था जब बॉर्डर मतलब उस वक्त छोटी छोटी रियासतें थी, वो पंजाब हो, राजस्थान हो या यूपी हो, जो क्षत्रिय समाज होता था, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज है ना। तो ये राजा के जरिए ये राजा की फौज होती थी, सैनिक होते थे, इन्होंने प्रजा की मतलब रक्षा की है हमेशा, है ना। जो समाज कल तक अपने अनेक सभी समाज भाइयों का मतलब बांधवों का, अलग अलग अनेक जातियों के लोगों का, मतलब अपने राज्य का या अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देते थे, ये वो लोग हैं, है ना। आज उनके हालात अगर ऐसे, आज जो जिनके पूर्वजों ने लोगों की माँ बहनों की रक्षा की होगी, लोगों की जिंदगी की रक्षा की होगी, आज उनके ऊपर ऐसे दिन आ रहे हैं कि उनके बहन बेटियों पे, उनकी औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। ये दुखद बात है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आज की तारीख में चलते चलते आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, शिंदे साहब की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की सरकार ने ये वादा कैसे कर दिया कि भाई हम जीआर निकाल रहे हैं। वो जीआर कैसे निकाल सकते हैं जब तक कि, जैसा आपने कहा, संविधान में संशोधन नहीं होता केंद्र में, तो कैसे ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये बताइए। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये खेल रहे हैं, ये सिर्फ खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, ये फिर एक बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके नतीजे मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में मैं महाराष्ट्र के मराठा समाज से अपील करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो बैठी हुई जो सरकार है ये मराठा विरोधी सरकार है। दूसरी बात, ओबीसी समाज भी एक तरफ ये कह रहा है कि भाई अगर हमारे में से अगर इनको आरक्षण दिया जाएगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे। अब उतर गए सर, तो हर आदमी को ऐसा उतर गए, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये तो कैसा है कि ओबीसी भाई और मराठा समाज इनको आपस में लड़वाने का काम करना चाहते हैं। तो मैं मेहरबानी करके मैं सभी समाज के महाराष्ट्र के मतलब भाइयों से कहूंगा कि इनकी राजनीति को समझो, इनकी गंदी राजनीति को समझो और थोड़ा इंतजार करो और इनको इनकी जगह आने वाले 2024 के चुनाव में अपने बैलेट पेपर के माध्यम से इनको दिखा देवे, वोटों के माध्यम से इनको रास्ते पर जगह पे ले आइए। महमूद देशमुख जी, अमित शाह जी बहुत कॉन्फिडेंट है, अमित शाह जी बहुत कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक ही मंच पर एक साथ यूनाइटेड नहीं हो सकता। उन्होंने बोले कि ये खत्म हो गए, देखो कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। बिकॉज जितना आप बढ़ते हो आप कांग्रेस के वोट खा जाते हो, कांग्रेस को नुकसान हो जाता है।
तो ये कैलकुलेशन अमित शाह ने रखा है कि आप और कांग्रेस अलग ही रहना पसंद करेंगे, एक साथ नहीं। तो कैसे? ये तो आपने देखा जहां जहां आप एकदम मस्त से लड़े हैं, आपने कांग्रेस को धूल चटाया है। तो हाउ डू यू सी दैट? मेहुल देशमुख जी, अमित शाह क्या सही है जब बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी फूटने वाले हैं? हाउ डू यू सी इट, मेहुल जी? ऐसा है, अब ये उन्होंने भविष्यवाणी का धंधा कब से शुरू किया मैं नहीं जानता, है ना। भविष्यवाणी करने का ये काम कब से शुरू किया मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ना हमने, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हमने किसी का वोट बैंक तोड़ा नहीं है। एक बात ये सच्चाई है कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है ना, जो सेक्युलर वोट बैंक है, वही वोट बैंक हमारी है। इसके लिए जो मतलब जहां पे हमारी ताकत ज्यादा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वहां पे हम लोग, हमारी सीटें आती हैं। जहां हमारे लोग मतलब हमारा संगठन मजबूत होगा, वहां पे हमारे विधायक और एमपी जीतेंगे। जहां कांग्रेस के लोग मजबूत होंगे, वहां पे उनके लोग जीतेंगे। तो इसमें हमारे में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये हम कोई इनके बातों में आने वाले नहीं, अमित शाह जैसे लोगों के बातों में कोई आएगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। वो घबरा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, तब ये हमारा जिक्र कर रहे हैं। हम तो उनका जिक्र नहीं करते जी, है ना। हम तो और उनका जिक्र नहीं हमेशा कर रहे। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण होते हैं उनमें सिर्फ आप लोगों की बात होती है, इंडिया अलायंस की बात होती है, ज्यादातर अपनी बात जरा कम करते हैं, सिर्फ आप ही की बात करते हैं। हाँ, तो उनके पैर के नीचे से जमीन सरक रही है ना सर। आप गौर करिए, उनके अलायंस पार्टनर बचा कौन है, आप मुझे बताइए। पंजाब में अकाली दल उनसे दूर हो गए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में उन्होंने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, बराबर है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ में उन्होंने गलत किया, नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ, अभी चंद्रबाबू नायडू अंदर जा रहे हैं, आप मुझे बताइए ना उनके साथ है कौन? हाँ, अलायंस पार्टनर में आज उनके साथ है कौन? हाँ, दुरुस्त बात है। बट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, आप इसी तरह काम करते रहें। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम जी कर रही सर। है, हम बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके जी। से आप लोग गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। एक बात और एक बात बोलिए sorry, सर, बोलिए प्लीज। एक बात और चलते चलते सुन लीजिए सर। अभी 6 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक जीआर लाया है, आप उसके ऊपर वाकई में आवाज उठाइए। आरक्षण के मुद्दे की मैं बात करना चाहता हूँ, जी, है ना। एक देखिए, एक तरफ यहाँ पे आरक्षण के ऊपर आग भड़की हुई है कि आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। आरक्षण की आग भड़की हुई है, आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक जीआर ला रहा है, 6 सितंबर 2023 को जीआर लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट सरकारी इसमें महकमे में, है ना, सरकारी विभाग में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ऑफिसर से लेके प्यून तक की भर्ती होगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 9 कंपनी को दिया है, आप चेक कर सकते हैं जी, दुरुस्त। आप मुझे बताइए कि अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई अगर अपॉइंट होगा, वहां पे तो फिर वो रिजर्वेशन वाला इश्यू ही खत्म हो गया। नहीं, वो आरक्षण है ही नहीं वहां, वो आगे नहीं नहीं है, बराबर। दूसरी बात, जो अगर क्लास 1 ऑफिसर कोई बैठेगा, जो उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, है ना। आज उस डिपार्टमेंट का अगर किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के बिठा दिया है इन्होंने, किसी कंपनी का एक एजेंट आके कंपनी अपॉइंट अगर किसको कर रही है, वो कंपनी अपने हिसाब से आदमी बिठाएगी, तो वो डिपार्टमेंट के जो सीक्रेट रिपोर्ट्स होंगे या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, वो लीक होने के चांसेस होंगे। हाँ, ये देश को, इस महाराष्ट्र को ये कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग? जैसे बड़ी गंभीर समस्या है सर। जैसे अभी बीएसटी में हो ही रहा है आपके सामने ही कॉन्ट्रैक्ट। सर बीएसटी देखिए, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्टर को देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कल मंत्रालय में बैठे हुए, सेक्रेटरिएट में बैठे हुए जो अधिकारी है ना, वो कोई एमपीएससी से नहीं निकलेगा सर। वो कोई प्राइवेट जो 9 कंपनी के मैं आपको नाम भेजता हूँ, उसके उनके लिस्ट भेजता हूँ आपको, उन 9 कंपनियों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ऑलरेडी। भाई आप हमको रिक्रूटमेंट करोगे, आपके माध्यम से हम मतलब ये फुलफिल करेंगे जगह। वंडरफुल। ये मतलब ये किस दिशा में हम जा रहे हैं? मतलब जो आपने कहा कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उसमें बहुत सच है, कहने का मतलब ये हुआ। और खर्चा कम करना चाहते हैं। सच्चाई है, यही सच्चाई है। यस सर, यस।
2024 में केजरीवाल जी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। करेक्ट, बन सकते हैं, ऐसी क्या बात है, कोई भी बन सकता है। देशमुख जी, जी सर 2024 में बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मैं देखिए एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते तो मैं ये कहूंगा कि ये मुझे खुशी होगी इस बात से, लेकिन लेकिन ये तय होगा नेशनल लेवल पे। जो अभी जो टीम इंडिया बनी है वो डिसाइड करेंगे, इसमें न मैं कुछ कह सकता हूं न कोई और कोई कुछ कह सकता है। राइट, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग ओके सर, टू यू। नमस्कार। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करते हुए। आप इसी तरह आते रहें और हम लोगों की जी, जानकारी जी, बढ़ाते सर। रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक ये यू। आप याद करते रहिए, हम आते रहेंगे सर। क्या बात है महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द वेरी जी, बेस्ट सर। एंड कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप वर्किंग लाइक ओके, दिस। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। And the Aam Aadmi Party has really and truly been working very, very hard for the slums, for the lower middle class, and for the middle class. The only party that is actually doing it and putting its money where its mouth is. The way they have worked in Delhi, the way they're working in Punjab, it's really and truly commendable. It's absolutely fantastic. मुझे ये करना है कि कांग्रेस, as you said, is copy pasting all its schemes. Yes, they are. 5 वचन, 6 वचन, 11 वचन, महिला एसटी ट्रांसपोर्ट फ्री, महिला को हम पर मंथ स्टाइपेंड दे देंगे, बुजुर्गों को लेकिन ये दे प्रदीप जी, देंगे, यहाँ पे तीरथ यात्रा पे दे देंगे। एक चीज मैं आपको तो बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस? I'll tell you what the difference is. The difference is in implementation. Mr. Arvind Kejriwal knows how to implement these schemes. Just like he has done it in Punjab through Bhagwant Mann, just like he has done it in Delhi. In Karnataka, because of the free travel for women, there's a private transporter strike. प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, द कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शास। That did not happen in Delhi. आप देखिए वो दिल्ली में नहीं हुआ, वो पंजाब में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Because Arvind Kejriwal, when he announced these schemes and implemented them, he knew how to implement them. He thought them through. आज की तारीख में आप देखिए सबसे बड़ा तबका जो अरविंद केजरीवाल को वोट करता है वो ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स हैं सबसे ज्यादा। और लोगों को ये लग रहा था कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में क्योंकि महिलाओं को ट्रैवल फ्री है इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑटो वाले होंगे और टैक्सी वाले होंगे और therefore they will turn against the आम आदमी पार्टी। Exactly the opposite has happened. So Mr. Kejriwal knows what to do because these are his schemes. Please understand. अरविंद केजरीवाल की ये schemes हैं और अरविंद केजरीवाल has thought them through. The Congress, as you rightly said, has just copied and pasted. No, That's it. but it's very interesting to see how the Karnataka Congress, handles this crisis. Because बोले कि बसेस में सब पूरे महिला घुस जी। गए और जो कार में जाते थे या टैक्सी में जाते थे या रिक्शा या ऑटो में जाते थे, वो नहीं जा रहे। सब लोग they're going in the buses. Yes. And buses are filled with them. तो the subsidies, बोले कि probably they're not getting subsidies. So this the government has to take care. They didn't think it through, Pradeep ji. They just announced it. And certainly people believed them because they thought that just like the Aam Aadmi Party has implemented it in Delhi and is implementing it in Punjab, the Congress will also be able to do it. Now they will have to sit with Arvind Kejriwal and take lessons from him. How do you do it? But they won on these promises. Yes, they did. 5 वचन, जी, 11 those वचन, वचन। अभी मध्य प्रदेश में 11 वचन, उसके बाद राजस्थान में इतना वचन, तो they are doing it. लेकिन जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है साहब, देखिए लोकसभा के चुनाव अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है वहाँ पे देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस एंड एवरीवेयर एल्स वेयर अरविंद केजरीवाल इज लाइकली टू टेल एवरीबडी। पर देखिए कर्नाटका में इन्होंने वादा किया लेकिन कर नहीं पाए, हमने जो वादा किया हमने इम्प्लीमेंट किया, तो आपके ऊपर है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज टू व्हाट हैपेंस because the Aam Aadmi Party, from whatever I know, they are good, they are professionals, they are very focused, they know if they have promised something, how to deliver. The Congress, well, they have promised and they are finding it very difficult to deliver. That's it. Now at the moment with us, at the moment we do have a few comments. थोड़े बहुत comments भी हैं हमारे पास, आप भी ज़रा अपने comments भेजते रहें. Please do send in your comments, as many as you can, and we'll try to read them out right over here on Nation Now. And if you haven't subscribed to the channel already, please do so. Can we have the comments on, please? Let's take a look at the comments. This is Mr. Bharat Singh. Rahul Gandhi is the new Prime Minister. Bullshit hopes.
That's what Mr. Mukund Rajan 896 That's once said. Didn't we read this yesterday? I think we did. Aggression coming from within. Yes, Sunny Deol reacts on his fee hike to 50 crores after Gadar 2 success. Is he getting 50 crores? I don't know. Great actor Sunny Deol. Pramila Dhamdhare 710 ऐसा इन्होंने कहा है. बिल्कुल ठीक है. He is a great actor. We all believe it. 50 is less. Sunny price should be 100 crore. Satish Saini साहब लिखते हैं QD1FC. Sunny Deol is a great actor. He's a fantastic personality and he's a really great man. Kangana Ranaut praises Shah Rukh Khan for Jawan. Can we take a look at what has been said about Kangana Ranaut? Proud of Kangana praising SRK. Only well-educated and humble can do like you. A humble person can do like you. Thank you. We love SRK. That's what this person says. Right, do keep sending in your comments. Do you think the Marathas deserve reservation? Do you think the Maratha reservation agitation is justified? And do you think the government is just trying to give them a lollipop and is not really serious about implementing reservations for Marathas? Please do send in your comments. Both Pradeep ji and I will try and read out as many as possible. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.